Hi guys, fantastic, good evening and always rocking with Forever. So we have another fantastic day today, but today's day is it's about this great person that we're going to talk about. So I don't want to take much time as we have fantastic speakers today. So I will not take much time. What I'll do is let's understand this person who we are going to talk about. But before that, instead of me talking about it, as we have just started, I'm going to show you all two videos. One video is going to be as about 3 minutes, which I'm going to show you right now. And after that, after the 3 minutes video, we are going to have fantastic speakers. One is myself, then we have Jose Matthew, who's again an amazing person, like a brother to me. Then we have Ujwala, then we have Rajiv Mehta, we have Jyoti, we have Bharat and Beena, we have Jayesh, we have Santosh, we have Praful, we have Manoj Gaikwad, and we have Jayanti Patel. So today is going to be a rocking day, and the best speakers, the best presentation, and we're going to talk mostly on Rex. Rex, who's like a father figure to us, not just a father figure, but I mean, I mean, there's no words to say about him. He's so excellent. I mean, we'll have to generate some new words and नया कुछ बात करना पड़ेगा उनके बारे में इतना तारीफ करने के लिए मतलब जेन्युइन है बाकी कोई जन का मैं बात नहीं करूंगा मैं रेक्स की बात करूंगा लेकिन मैं अभी बात नहीं करूंगा मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि वर्ल्ड के लीडर्स the world leaders what they say about Rex. So just give me a minute. I will just play this video. I hope you can hear my voice and sound. Everything is perfect, guys. Okay, just type 1 so I know everything is good, sir. Okay, thank you. Thanks, Rajiv, you've been great. Thanks. So I'll just share one video and we'll get things rocking. Is the sound perfect? No, sir, we can't see the video, not even the sound. Okay. Can you see the sound? Perfect. Rex, where do you start when you have to say anything about Rex? Why can't I speak? Rex ist die Seele von dem Geschäft. Rex is a teacher, he's a legend, he's a visionary. To me, he is a hero. He represents everything that is incredible in a man. He's just full of love, and the love that he has, I think it's contagious, and it goes to almost each and everyone who comes across Rex. And if you spend even a second with him, you'll feel the love in him. I'm always very impressed with Rex because he always remembers you. So last year on stage, to pick up my chairman's bonus check in London, I brought my eldest daughter Ella with me. I walked on stage with Ella and Rex just went straight up to Ella and said, "Ella, how are you?" And he hadn't seen her for 7 years. Ich sage dann aus Spaß immer, wenn Rex in den Raum kommt, Rex kommt nicht, Rex erscheint. So Rex is like a father to all. Rex is like God sent. I just happily got engaged and Rex congratulated us and he looked at Helena's finger and said, "Well, where's the rock?" And I said, "Well, I haven't got a rock yet because I wanted to consult you before." It's just the people that Rex cares about. He cares about the families. He's not just this businessman who's interested in making Forever into a world-dominating company. And that's what I love about Rex. He was sitting there at this breakfast table and he reached to his pocket and put out a little envelope with and in it was a rock. It was a big diamond. Είναι το έμβλημα αυτού του χώρου και δίνει σε πάρα πολύ κόσμο, σε όλο τον κόσμο, μεγάλη έμπνευση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Again, it's beautiful. What am I going to say? And he said, "Well, I'm glad you wanted to consult me first because it's fake."
I like this man. I like, and I love, not just like love. He's a wonderful person, you know, with the joy and the joyful life, and with his humor. And I just want to know where he finds all his energy from, because that guy is unbelievable. And he's still everywhere, shaking hands, taking photos, traveling, and showing his appreciation to all of us. He's a great guy. Rex is the greatest that ever happened. I see him like somebody who have a feeling to help humankind. I'm just so grateful that he had the courage to do what he did. He's an incredible guy. And we love him. And I always say to people when I meet them for the first time, when they're joining Forever or new FBOs, I'll say the one thing that you know about Forever is that it's led by one of the finest human beings that I personally have ever met. वाओ, व्हाट फैंटास्टिक. इफ गुड, आप आज जो सुनने वाले, जो सुने हैं, जो इंग्लिश में इन्होंने बात किया था, और इतना कोई के पास तो वर्ड्स ही नहीं थे क्या बात करने का उनके बारे में, क्योंकि इतने अच्छे आदमी थे, इतने जेन्युइन थे. और आज हमारे पास बहुत अच्छे स्पीकर है, पूरा लिस्ट है स्पीकर्स का. और बाद में क्या करने वाले मालूम है, हम एंड में, आप जाना मत, एंड में और एक वीडियो प्ले करेंगे जो 20 मिनट्स का है, जिसमें आपको और इंफॉर्मेशन मिलने वाला है. आई थिंक somebody is sharing the screen. I don't know why. Hold on. Rajiv bhai, sharing control. Okay, I don't know who was sharing the screen in the middle. Anyway, God bless them. So ये जो आदमी थे, उनका मैं एक्सपीरियंस में 2 ही फोटो रखा है, क्योंकि I had lot of photos, but I wanted to talk only on 2 photos, and we have excellent people in our team who are going to tell you more information about him. So I will just come to the screen share and share some experience about him on 2 photographs which I have. I just want to share those 2 photographs right now. Okay. एक ये फोटोग्राफ था. अभी ये फोटोग्राफ की मैं बता दूं, जब मैं रेक्स के साथ था, दिस वाज इन माय Audi A6, और जब मैं गाड़ी लिया था, इट वाज ब्रांड न्यू. सो आई हैड इनवाइटेड हिम. वी वर एट द शेरेटन होटल, और होटल के बाहर आए, मेरे गाड़ी में बैठे और एक गाना भी सुना, और ये भी बोल रहे थे लॉन्ग ड्राइव जाते कि नहीं, मस्ती करते कि नहीं, घूमते नहीं, क्योंकि रेक्स का एक चीज था ना, बहुत मस्ती वाला था, और जो मेरे को जमता है, क्योंकि मैं भी वैसे ही मस्ती वाला हूँ. तो इतना जॉली, इतना डाउन टू अर्थ एंड माइंड ब्लोइंग. आई मीन, मेरे को अभी भी याद है, हम लोग जब मेक्सिको में थे, और मेक्सिको में हम लोग होटल से जा रहे थे, तो होटल के लॉबी में हम लोग रुके थे फॉर द बस. तो रेक्स रूम में से आया. अभी जब आया, आप सोचो, रेक्स जैसा आदमी, ओनर ऑफ फॉरएवर लिविंग, मालिक, खुद का लगेज, खुद का बैग खुद उठा के जा रहा है. तो मैं भग के गया लॉबी से उनके पास. सर, कैन आई कैरी योर लगेज फॉर यू? बोले नो, आई डू माई ओन. ऐसे इंसिडेंट थे उनके साथ कि मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कि आप देख सकते हैं, मेरे गाड़ी में बैठा है. मैं तो कुछ नहीं था, एकदम सिंपल मैनेजर था, लेकिन तो भी इंडिया में जब भी आए ना, ऐसे नहीं कि ओनली सिलेक्टेड लोग को मिले या ओनली टॉप लीडर्स को मिले. आदमी जो फर्स्ट टाइम आया है, जो फर्स्ट टाइम आके मिला है, ना, उनको भी जाके मिलते. तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आई हैव गॉट ओनली 5 मिनट्स एंड ऑल द लीडर्स विल हैव 5 मिनट्स टू स्पीक, सो आई शुड नॉट बी ब्रेकिंग द रूल्स. तो ये ऐसा इंसिडेंट था. मैं और आपको एक फोटो दिखाऊंगा कि ये इतने अच्छे इंसिडेंट थे. अभी ये मेरा, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ जब फॉरएवर चालू हुआ था, ये अगर आपको जो जूनियर डिस्ट्रीब्यूटर शायद याद, ये पूजा सेंटर था.
और पूजा सेंटर में अमरजीत when he just came to India and he started the business, यहाँ वो बैठते थे, तो वो चेयर पे वो बैठे थे और हमें भी उधर आया था, मतलब इन दोस टाइम्स। और उस टाइम पे जो हम लोग ने, आप देख सकते हैं उसका फेस में एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस और धमाल था, क्योंकि इसके बाद हम वैंकूवर, कनाडा सब जगह पे मिले थे। और मेरे को अभी भी याद है जब हम, यू नो व्हाट इज वेरी अमेजिंग है जो ये आदमी का है, he remembers everybody's name, he remembers their children's name, he remembers each and everybody's name। मैं आधे दिन का नाम भी भूल जाता हूँ, तो that is mind blowing। और इनके साथ only रहना, just standing next to him itself gives a aroma, that is fantastic with this guy, this guy is superb। मैं ज्यादा टाइम और नहीं लूंगा, लेकिन मेरे को अभी भी इनके ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स याद है कि जब हम अब्रॉड जाते हैं, he will travel in the same bus that we are traveling। तो जो बस हम जा रहे हैं या जो गाड़ी, ऐसे नहीं कि उसके लिए वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, he would spend time with us and talk to us and mix with us, and we have a lot of experience, but I will not take time as we have fantastic speakers today। So our one of our first speakers जो आज बात करने वाले हैं वो है जोस, और आपको मालूम है जोस मैथ्यू is also one of our top leaders, he's going to talk। Then we'll have Ujjwala also after that, then we'll have Rajiv, then we have Jyoti, then we have Bharat and Veena, then we have Jayesh, Santosh, then Praful and Manoj Gaikwad, and we have Jayanti Bhai also, who's again going to talk today। But I'll not waste time. I would like to bring Jose Matthew, so I can get him on the screen right now. 1 minute. Huh? Yeah, Jose. Hi. Nice to see you. Excellent. Yes. Nice to see you too, Simon. Long time. Excellent. You know what I was just discussing? I know this is a sad thing that our Rex is expired, but I am sure, I mean, I am 100% sure wherever he is, that is where he's in heaven, he will never want us to be sad. He'll want us to hit the rock. He'll want us to have fun. He'll want us to just go and achieve and get prosperity, not only to us, but to our full team, to people who can't afford it. So I'm sure that might be his vision, and he'll be happy that we are doing this. He would not want us to be sad and depressed and cry. He would, I'm sure, want to do it. But as you're the guest speaker right now, I would, first of all, thanks for coming. And Jose, the screen is all yours. Okay, fine. Thank you so much, Simon. Yeah, it's not an easy thing, you know, to like Lord Simon has ज़्यादा नहीं बात किया, लेकिन Rex हमारे लिए ना it's like a very close, एकदम नहीं बोलते हैं sad नहीं होना, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बड़ा लॉस हो गया हम लोग का। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो एक जीते जागता चिराग है हम सब के अंदर। अगर आप अपने आप पे विश्वास करते रहेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि जो फॉरएवर के साथ जुड़ा है ना, काफी समय से, काफी लोग तो यहाँ पे 10-15 साल, मुझे 21 साल हो चुके हैं, साइमन को 21 साल हो चुके हैं, हम लोग 21 साल से फॉरएवर के साथ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो फॉरएवर का हिस्सा बन जाता है ना, तो उसके लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए बदलाव आ जाता है, और एक चिंगारी नाम का चीज, एक छोटा सा ज्वालामुखी बनने के लिए तैयारी हो जाता है। और रेक्स एक ज्वालामुखी थे, और उनका ज्वालामुखी खाली है, ज्वालामुखी नेचुरल में सब जगह आग लगा देता है या तो एक डिस्ट्रक्ट करता है। लेकिन जब रेक्स ने ये विजन लिया था 43 इयर्स पहले और ये बिजनेस को शुरू किया था कुछ 20-30-40 लोग के साथ, ओके, लेकिन वो जो विजन है आज पूरे 160 से अधिक देशों में फैल गया है, हमारे लाइफ के अंदर फैल गया, ये सब आप लोग जानते हो। लेकिन रेक्स का दिल इतना बड़ा था, इतना सही था। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ उनके साथ, उनके बारे में कुछ लफ्ज़ बनाऊं। 5 मिनट तो बहुत कम है उनके लिए, 5 घंटे भी मेरे को मिले तो शायद मेरे पास कम से कम उनके कलेक्शन के कम से कम, जो मेरे हाथ में अभी रेडी है, कम से कम 150-200 फोटो तो है रेक्स के साथ के, ओके। लेकिन उसके अलावा मेरे काफी कुछ जो हार्ड कॉपीज है ना, जो उसमें है, जिसको मैंने कभी स्कैनिंग नहीं किया, ओके। और उसके अलावा मेरे पास गूगल के अंदर जो है वहां पे घूम चुका है, मेरा एक आईपैड के साथ ही पूरा का पूरा गायब है, मुझे मालूम नहीं कहाँ है। तो काफी कुछ मेरे ऐसे पिक्चर जो एकदम खास थे वो तो गायब ही है। लेकिन ये हम लोग बता रहे हैं हमारी लाल करने के लिए, ये बताने के लिए, ये जो इंसान था, इतना दिलदार था, उसका इतना अच्छा लक्ष्य था,
इतना अच्छा दिल था कि खाली एक ही लक्ष्य था कि दुनिया में हर किसी के घर में खुशी आए, हर किसी के जेब भरे, हर किसी के घर में शांति आए, और वो एक कैरियर बन जाए, एक एम्बेसडर बन जाए, ये शांति और प्यार बांटने वाला। और ये हम लोग शुक्रगुजार है रेक्स के लिए, क्योंकि रेक्स ने ये कर दिखाया और बताया हमको। और मैं अभी गुरु का फॉलो करना पड़ेगा, साइमन का, तो मेरे 130 फोटो नहीं दिखाऊंगा मैं कुछ गिन चुन के एक दो यहाँ वहाँ के बताता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ तो मालूम पड़े कि भाई रेक्स क्या थे, क्या कैसा जिंदगी बदल दिया हमेशा की। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पिक्चरें दिखाऊंगा। रेक्स के साथ मैं रहते रहते मेरा ये सौभाग्य था कि रेक्स के हाथों से मेरे असिस्टेंट सुपरवाइजर का मैंने रिकग्निशन लिया था, सुपरवाइजर का रिकग्निशन भी उनके हाथ से लिया, मैनेजर का रिकग्निशन भी उनके हाथ से लिया, सीनियर मैनेजर का रिकग्निशन भी उनके हाथ से लिया, सोरिंग मैनेजर का भी रिकग्निशन मैंने यूएस में जाके उनके हाथ से लिया। ओके, और उसके अलावा चेयरमैन बोनस और बाकी के काफी कुछ जगह में मैं ले चुका हूँ। उसके अलावा वो मेरे साथ उनके साथ मेरा तो काफी उठना बैठना रह चुका है। 3 दिन मैं अकेला एक ऐसा एक एफपीओ था फॉरएवर की तरफ से जो screen is not being shared. Oh yeah, okay, one second, give me a minute. You have to go to share screen first. Yeah, I'm doing. Just give me a minute. I'll just select the snaps. Yeah, okay. Please, go ahead. I'll just give maybe 1 minute दे दीजिए, मैं अभी update कर दूँगा, ठीक है? Just give me a second. Okay, so I'm keeping on talking. I'm selecting. I'm keeping on talking. Okay. But it is not being shared. No, give me a second. I'll just quickly get the pictures here because I can't show all the pictures ना. Okay, कुछ शुरुआत के पिक्चर दिखाना है मुझे और बताना चाहता हूँ कि रेक्स के साथ रहने से लाइफ कैसे बदलती है। ओके, जीरो से हीरो कैसे आदमी बन जाता है। और रेक्स जो ऐसा हमारे साथ जो व्यक्ति है उसके साथ मैं खास 3 दिन मैं ऊपर नीचे मैं बोल रहा था, शिलोंग में मैं बैठा हूँ और शिलोंग का जो जर्नी था वहाँ पे वो उनका असली मेरे को जो उनके साथ उठने बैठने में मुझे उनका जो है ना जो कैरेक्टर, उनका जो असली नेचर का समझ में आया, जहाँ पे मैंने देखा कि वो कैसे थे, क्या है, किस तरह से लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ओके, और वो उनके साथ मैं पूरा शिलोंग के अंदर इंटीरियर्स में हम लोग गए थे, पूरा चेरापूंजी आप बोलो वहाँ सब। उसके अलावा मेरे वहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना, और ये कुछ ऐसे पिक्चर है शायद आप लोग ने ज्यादा लोग ने तो शायद देखा भी नहीं रहेगा। ओके, तो मैं कुछ ऐसे पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा हूँ और जैसे मैं बोल चुका मेरे पास इनके काफी पिक्चर हैं। ओके, जो क्या बताऊं मैं, ये ना सच लीजेंड, यू कैन नॉट फिनिश हिम इन 5 minutes। ओके, 5 मिनट का कम है यार, ये सबको बुला के आधा घंटा देता ना साइमन, कम पड़ता तो। ओके, बट he is left a legacy and I want to show you that he is a giant. He is a giant. Okay, and I want to show you the first picture with him and my last picture with him. 2019 में अक्टूबर में हम लोग ईगल मैनेजर रिट्रीट के लिए गए थे, जहाँ पे उनके साथ मेरा लास्ट पिक्चर था। And I really feel for him and I miss him now. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फॉरएवर के साथ रिसेंटली जुड़े हो तो आपको खाली बिलीव करना है कि आप ऐसे कंपनी के हाथ में हो, ऐसे व्यक्ति का कंपनी है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। आपको खाली बिलीव चाहिए अंदर से, and it can be yours forever. Okay, this can change your life forever. Have faith that you are in the right company. आप सही कंपनी के साथ जुड़े हो। Now let me show you some slides, some pictures. I hope I've got it done. Now tell me, it's coming? Yeah, perfect. Okay, yeah. ये है जब हमारा फॉरएवर का लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2 तारीख को। मैं मई के महीने में मैं ज्वाइन हुआ था। हम लोग सब अप्रैल मई जो मेरे ख्याल से साइमन अप्रैल में जुड़ा था शायद या मई में, बट हम लोग वही टाइम पे हम लोग सब जुड़े थे। लेकिन हमारा ऑफिशियल लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2 तारीख को, और जब स्टेज पे मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर का रिकग्निशन मिला था रेक्स के हाथों से। ये मैं मैनेजर बना उस टाइम और ये सीनियर मैनेजर बना था, और ये हम लोगों का फर्स्ट सेलिब्रेशन, फर्स्ट 1 year जब कंप्लीट हुआ था। मेरे बच्चे को देखो कितने छोटे हैं। ओके, दे वर जस्ट सो स्मॉल। द यंगेस्ट वाज इन माय वाइफ्स हैंड। ये देखो हम लोग यंग, एकदम स्मार्ट, डायनेमिक। साइमन दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ। ओके, लेस्टर भी है यहाँ पे। ये सब रेक्स के साथ, ये रेक्स शिलोंग में घूम रहे हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने सिंपल। वो लेडी को बोलते हैं मेरे ये भुट्टा बेच बनाना छोड़ो, मेरे साथ कंपनी में जुड़ जाओ, मेरे कंपनी के साथ। नवाज भी थी, हम लोग सब वहाँ पे खास 3 दिन पूरा टूर करें। ये कोई एयरपोर्ट में मैं इनको पिकअप करने गया कभी का। ये पिक्चर है अगेन, अलग अलग जो शिलोंग के अलग अलग ट्राइब वाले थे उनके लिए परफॉर्मेंस किया था। ये मेरे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ के डॉक्टर लिंडम के साथ टेबल पे हम लोग बैठे। और ये
अलग अलग वहाँ के टॉप मैनेजर्स है, सबके सब मैनेजर्स बाय द वे, आइजॉल के मेरे पूरे मैनेजर्स, पूरे मिजोरम के, मणिपुर के, अलग अलग एरिया से आए हैं। ये मेरे कुछ वहाँ के टॉप लीडर्स, पिनोला, विकी, डॉक्टर लिंडम, डॉक्टर वॉर, ये सब मिलके हमारे साथ। और ये हम लोग जो वहाँ पे टूरिज्म करने गए थे, तो इधर एक गुफा है शिलोंग के अंदर, वेरी स्पेशल केव, एंड रेक्स वांटेड टू, एंड ही वेंट थ्रू ऑल पूरा अंदर अंदर। वहाँ पे जंगल का कोई एक करवंदे जैसा कुछ चीज है, करवंदा नहीं, एक बेरीज है, he wanted to taste that and he went around. This is, you're seeing, this is close to Bangladesh, you can, यहाँ से बांग्लादेश बाजू में, he was so excellent. रेक्स के हाथ में आप लोग देख रहे रहेंगे छोटा सा एक कैमरा है, he would always carry this camera with him, सब जगह लेके चलते थे। यहाँ से नीचे देखेंगे तो बांग्लादेश दिखता है, and we were walking everywhere, talking everywhere, chatting, and here Rex used to love butterflies. बटरफ्लाइज का पिक्चर ले रहे खुद के कैमरा में, तो अपने अपने मेमोरीज के लेके जाते थे। इधर ये केव के एंट्रेंस में खड़े हम लोग, ओके। तो काफी खाली दिखा रहा हूँ मैं बताने के लिए, इतने डाउन टू अर्थ, इतने सिंपल। I spent 5-6 hours going up the valley to Shillong with him, and then the rest of the 3 days उनके साथ थे। इतने थक गए, तो मैं थक जाता हूँ तो मेरे को लगता है होटल जाना चाहिए, but he said no going to hotel, he came straight to the Shillong RDO, और फुल जितने उधर 150-300 लोग जो थे उनके साथ फोटो निकाला, खड़े रहे। तो फ्लाइट करके आए, फिर यहाँ से 5 hours का जर्नी किया, और रास्ते में प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो इट्स ओके, आई कैन अडैप्ट, आई कैन एडजस्ट। ये अलग अलग लीडरों के साथ वहाँ पे, ये मनोज लांबा जो हमारे, आप लोग अगर नहीं मालूम है थे बताने के लिए, मेरे भाई साहब है, मैनेजर है काफी साल से, हर साल 1.5 लाख, हर महीने का 1.5-2 लाख का चेक ले लेते हैं। और ये हमारे कंपनी में जुड़े थे करीब 10-12 साल पहले। इनके ऊपर से मैं क्यों स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि ये चौथी फेल है, ओके। और कम से कम 2 साल 1,500 सीसी करके यूएस नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो सोचते थे कि शायद वो 10वीं पास नहीं है तो उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। 2 साल के बाद जब करा तो फर्स्ट टाइम ट्रिप मारा तो सीधा हवाई का। ऐसा है ये वक्त ही। और रेक्स के साथ ये पिनोला और उसके हस्बैंड यहाँ पे इनको इनवाइट कर रहे हैं, जैसे वो आ रहे थे तो ट्रेडिशनल वेलकम किया गया इनका, हम लोग सबका स्वागत किया गया कि वेलकम टू शिलोंग बोल के। यहाँ पे ऑन द वे टू शिलोंग पाइनएप्पल वाले के पास बैठ गए, उनके हाथ पकड़ के उनसे बात कर रहे, उनके साथ भी उन लोग सबको इंग्लिश आता है भाई द वे, तो इंग्लिश में बात कर लिया, उनसे भी मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे अच्छा बोले, व्हाई नॉट वी पुट फॉरएवर ब्रांड ऑन दीस पिकल्स, मेरे को पूछ रहा था, ओके। एंड ये रेक्स के ऑफिस के नीचे उनके गाड़ियों के साथ खाली ऐसे कई मैंने उधर इधर डाला है। रेक्स के ऑफिस की पहली गाड़ी थी जो रेक्स की, ये रेक्स के साथ पहला चेक मेरा चेयरमैन बोनस का। ये रेक्स के साथ बच्चे बढ़ रहे हैं, देखो रेक्स के साथ अलग अलग विजिट्स, दिस इन लंदन विद द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, एंड आई बिलीव ही लेफ्ट अ लेगेसी फॉर ऑल ऑफ अस। आज हमारे अंदर वो चिराग छोड़ के गए हैं, ये चिराग को हमको लेके आगे बढ़ना है, हमारे बिजनेस को लेके आगे बढ़ना है, रेक्स का सपने को लेके आगे बढ़ना है, कि लोगों की लाइफ को बदलना है, हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके जीवन में बदलाव लाना है, स्वास्थ्य में, पैसे में, लाइफस्टाइल में, ताकि वो भी अपना सपना जी सके और अपनी जिंदगी पूरा कर सके। रेक्स के साथ सोरिंग मैनेजर का मेरा रिकमेंडेशन हो रहा है। ये अभी 2019 में जब हम लोग गए थे ईगल मैनेजर रिट्रीट के लिए फिनिक्स में, अपना फिनिक्स में था, जब ये हेड ऑफिस फिर से हम लोग अटेंड करे, यहाँ पे रेक्स का एक पुतला है और रेक्स का स्टोरी लिखा गया है कि कैसा ये ऑफिस के बैंकों ने ओन करते थे। देखिए यहाँ पे लिखा है, परचेज द बिल्डिंग was a bank and then was Rex purchased the building and office has been largely been used। ये शिलोंग के पीक के ऊपर खड़े, हम लोग शिलोंग पीक बोलते हैं, इधर खड़े हम लोग मस्ती मजाक में। He's used to that, see he was crowned as a chief there, अलग अलग ये कॉर्पोरेट ऑफिस के सामने। और ये अगेन चेरापूंजी में, ये हमारे पुराने कंट्री मैनेजर उनके साथ खड़े हम लोग, अगेन शिलोंग, all on the Shillong pathway। Now I've just chosen because of limited time, I don't have much to say, but I want to tell you all this, that Rex is a gem of a person and we are going to miss him forever। I have spent precious moments with him, और मैं बताऊं हर बार जाएंगे। ये 2019 में भी गए तो थोड़ा मेमोरी का उनका थोड़ा चैलेंज था, लेकिन जैसे ही नवाज ने बोला यू रिमेंबर जो शिलोंग, एकदम से यस आई नो बोल के। मेरे साथ जयंती भाई थे, जयंती भाई को भी एकदम से पहचान लिया, मैं उनको बोला यू नो द बफेलो मैन, नवाज ने जैसे बोला उनको याद है, ओके इतना याद है मुझे तो। चलो मुझे साइमन, हम लोग सबको नाम से पुकारते थे, बट दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल, वेरी हम्बल, एंड वी आर प्राउड दैट ही इज लीविंग हिज लेगेसी। वो उनके हाथ, उनकी गाड़ी या तो उनके जो बिजनेस को चलाने के लिए अपना हाथ लेके ये आज हमारे ग्रेग मॉन्क जी के हाथ में दे दिया है। और आप देख रहे हैं कि वो कितने अच्छे से, अभी नहीं, अचानक नहीं, 4-5 साल पहले ये काम शुरू हो चुका था कि आज ये बिजनेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा टाइम शायद खत्म हो चुका है और मैं आगे ज्यादा, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मेरे पास और फोटोज है, बहुत कुछ है, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन खाली इतने मैं झलक से बताना चाहता हूँ कि
फॉरएवर में अगर आप जुड़े हो, आप नए हो, आज पहला दफा ये मीटिंग देख रहे हो, तो ये सब क्या हो रहा है, रेक्स कौन है? रेक्स हमारा इस कंपनी का मालिक है, जिसने इस विजन को लिया, जिसने इस मार्केटिंग प्लान को खड़ा किया, उसके बाद इस बेहतरीन प्रोडक्ट्स को खड़ा किया, और जिस किसने भी इस कंपनी और सिस्टम को विश्वास किया और डटे रहे, यहाँ वहां ना देखते हुए उनके लाइफ में बदलाव लाया। आपके लाइफ का भी बदलाव करेंगे। जैसे दूसरे स्पीकर्स आ रहे हैं, आपको मालूम पड़ेगा मैं जो बता रहा हूँ ये फैक्ट है और कुछ नहीं। थैंक यू, बिग गॉड ब्लेस। थैंक यू साइमन। Jose, I mean, seeing all those old photographs, जो जुने फोटोज देख के अभी भी वो पूरा विजन मेरे सामने आ रहा है। And when you were talking now, it was like a drop of tear coming and a smile coming. It was a combination of both. मतलब ये जो आपने जो वीडियो प्लस आपने सब जो दिखाया है जुने क्वालिफिकेशन, वो पूरा मेमोरी है ना, जो हम लोग ज्वाइन किए थे इन पूजा सेंटर, and the experience was amazing. Sorry, Jose, we could not give you a lot of time because we've got I understand speakers and we want to give justice to everybody. No worries, no worries. Or even in the end, now we're going to show one video. You must watch the video in the end. We're going to show it because people who want to leave can leave, and people who want to really watch the video can watch it. We'll give in the end. But I think now we'll thanks Jose again for coming. It's really been an honor. बहुत अच्छा ऑनर था कि जोस हमारे साथ आए और इतने अच्छे अच्छे फोटोज जो शायद मेरे पास भी नहीं थे उन्होंने दिखाया। तो हम आज अभी as the show has to go on and we would like to call Ujjwala. So Ujjwala, are you there? Yes, Ujjwala is quite there. Okay, fantastic. So हम लोग दोनों साथ में बात करते हैं. Let Ujjwala come again here. Okay. There she is. थोड़ा पूरी आगे आ जाओ। Okay, so I'll fantastic. Praful, first of all, जोस ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया, और प्रफुल, I like the eagle. आपके पीछे जो ईगल है, पहले दो ईगल है। प्रफुल, आपके साइड में भी एक ईगल है, पीछे भी एक ईगल है। वो ईगल नहीं है, वो टाइग्रेस है। तो मेरे बाजू में ईगल है। So fantastic. So I think I'll not waste time. The screen is all yours. Thank you. Okay. Thank you. अभी रेक्स के बारे में क्या बताए सर? रेक्स के बारे में मेरे ख्याल से उज्ज्वला हैज अ स्टोरी रेक्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन का। उज्ज्वला के पास एक बहुत ही शानदार स्टोरी है, और लेट हर बिगिन एंड देन आई विल स्पीक अ लिटिल। हेलो एवरीबॉडी, हम अभी आज सब लोग रेक्स के बारे में बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सब लोग रेक्स ने जो हमारा सब जीवन बदली किया है। अभी जो साइमन ने वीडियो दिखाया था उसमें बोला था किसी ने कि जब भी रेक्स एंटर करता है वो तो अपीयरेंस होता है, तो रेक्स ने तो हमारा अपीयरेंस ही चेंज कर दिया, हमारा लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया रेक्स ने। तो जो जब भी मैंने रेक्स को पहली बार मिली थी तो सुना था कि सीईओ ऑफ द कंपनी, लेकिन जब भी मैं यूएस गई फर्स्ट टाइम और रेक्स को मिली, सब लोग उसको रेक्स ही बोल रहे थे। सॉरी, वो स्क्रीन जो है ना उज्ज्वला का डिसअपीयर होता है, कभी आपका स्क्रीन डिसअपीयर होता है तो काम करता हूँ, वर्चुअल निकाल देता हूँ। हाँ, वर्चुअल निकाल लो। यस, हाँ, वर्चुअल निकाल देता हूँ तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा। बिकॉज एवरीबडी, उज्ज्वला आपका भी थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दो, आप क्या करते क्या नहीं करते। बिकॉज हाँ, मैं देता हूँ उज्ज्वला का इंट्रोडक्शन। शी इज अ वेरी सीनियर मेडिकल ऑफिसर विद बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। उसका शी इज पास्ड आउट फ्रॉम जीएस मेडिकल कॉलेज, केएम हॉस्पिटल से। वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर और बहुत ब्रेनी है, और उसकी कम से कम 25-26 साल की सर्विस हुई है विद बीएमसी। और कोविड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कोविड के पूरे 1 साल में उनको 1 दिन की छुट्टी मिली थी, और बाकी के दिन पूरा, दिवाली के 1 दिन छुट्टी थी, बाकी पूरा उन्होंने काम किया है। सो हैट्स ऑफ टू देम। ओके, या शी वाज शेयरिंग समथिंग। मैं बता रही थी कि मैं जब फर्स्ट टाइम यूएस गई तो रेक्स सीईओ ऑफ द कंपनी ये मेरे दिमाग में था, लेकिन वहां जाके मैं देख रही हूँ तो सब लोग उसको रेक्स ही बोल रहे थे। फ्रॉम कोई भी हो, 4th क्लास वर्कर हो, कोई भी हो, उसको रेक्स ही बोल रहे थे। सो आई वाज वेरी सरप्राइज कि सब इतना बड़ा आदमी है, उसको सब रेक्स बोल रहे हैं। जैसे हम लोग पहुंचे वहां सबका लगेज आ रहा था, सामान आ रहा था, और रेक्स उधर खुद खड़ा था कि सबको सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बीइंग सीईओ ऑफ द कंपनी वो ये सब कर रहा था, सबका ध्यान दे रहा था। और मुझे एक बात कहनी है कि इंडिया के लोगों के लिए उसको बहुत प्यार था। जहां भी जाए वो सब इंडिया के लोगों को पहचानता था, नाम से पहचानते थे वो।
जैसे मैं तो हमेशा बीना भाई भरत भाई के साथ रहती थी, तो आके बहुत कैसे बीना भरत उनके नाम से वो पुकारते थे उनको। और एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी, हम लोग एक बार पोस्ट रैली गए थे, तो उधर हम लोग ग्रैंड कैनेट में गए थे, तो उधर रिसोर्ट में मैं कुछ बाय कर रही थी, जैकेट था एक फॉरएवर का जैकेट। सिंस प्रफुल्ल वाज नॉट विथ मी, तो आई थॉट कि मैं प्रफुल्ल के लिए एक जैकेट ले लूं। तो उधर मैं खड़ी थी, पीछे से कोई आया, मेरे हाथ शोल्डर पे हाथ रखा और वो सेल्समैन को बोला, शी इज माय फ्रेंड फ्रॉम इंडिया, चार्ज हर डबल फॉर द जैकेट। वो था रेक्स पीछे, मेरे पीछे, बट आई डिडंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द जैकेट बिकॉज रेक्स वाज देयर। रेक्स ने वो मुझे बोला कि दिस इज फॉर योर हस्बैंड, so you are going to take it from me, a gift from your husband। और एक दूसरा इंसिडेंस है, बहुत मेरे दिमाग में इंसिडेंस है, मैंने शायद ये बताया इंसिडेंस, ये पोस्ट रैली का इंसिडेंस है। फर्स्ट टाइम मैं यूएस गई थी, जब भी मेरे हस्बैंड को वीजा नहीं मिला था प्रफुल्ल को, तो मैं गई थी जहाँ सब लोगों ने मुझे मेरा अच्छी तरह से संभाल किया था। भरत भाई थी, निकिता थे, और बहुत बड़ी बात है, जहां जहां हम लोग पोस्ट रैली में जाते थे, हर एक बस में या फ्लाइट में रेक्स हमारे साथ होता था। जब भी लिस्ट देखते थे हम लोग, इंडिया का फ्लाइट है, इंडिया का बस है, उसमें रेक्स का नाम रहता था। तो रेक्स इज ऑलवेज यूज्ड टू बी इंडियन टीम। वो पहले सीट पे बैठता था, हर एक जो आदमी आता है अंदर उसको ग्रीट करता था, उसके साथ बात करते थे। वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, पहले अंदर आएंगे तो पहले रेक्स का ग्रीट होता था, उसके बाद ही हम लोग अंदर जाएंगे। तो वैसे हम लोग एक होटल में गए थे, रिसोर्ट में गए थे, वहां बैठे थे, तो निकिता ने उसको इंट्रोडक्शन कराया कि तभी हम लोग नंबर 1 थे नॉन मैनेजर सीसी में। तो निकिता ने इंट्रोडक्शन कराया कि नंबर 1 है नॉन मैनेजर सीसी में, उसका हस्बैंड नहीं आया है रैली में, दिस पोस्ट रैली में, ही कुड नॉट कम बिकॉज वीजा नहीं मिला है। आई वांट टू टॉक टू हिम। चलो उसको फोन लगा, तो मैंने फोन लगाया, सुनो आगे की बात आपको प्रफुल्ल बोले। मैं बोलता हूँ, वहां पे दिन था, यहाँ पे रात थी, और रात को 2:30-3 बजे मेरा फोन बजा। फोन देख रहा हूँ, उज्ज्वला का यूएसए का नंबर था, अमेरिका का नंबर। तो मैं रात को नींद में फोन उठाया, बोला यस उज्ज्वला क्या चल रहा है? तो बोली अरे बात कर, इधर रेक्स तेरे से बात करना चाहता है। मैं नींद में, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। फिर उधर से आवाज आई, हे प्रफुल्ल हाउ आर यू, आई एम रेक्स हियर। मेरा थोड़ा सा नींद में था, मेरे को लगा सपना इतना होएगा, जो भी है। Yes, I am fine. Next time you do wonderful thing. Next time you do more CCs, qualify again and come and I'll meet you. Okay? So take care. God bless you. ऐसा बोल के फोन रख दिया उसने। और बाद में नींद थोड़ी खुलने के बाद मेरे को याद आया कि साला मैं रेक्स से बात किया। रेक्स मेरे को फोन किया। एक कंपनी का सीईओ जिसका 100 देशों में मालकी का ऑफिस है, 100 कंट्रीज में प्रॉपर्टीज है, न जाने कितना विंटेज कार है, न जाने कितना रिसोर्ट्स है, न जाने कितना फैक्ट्रीज है, जमीन है, और वो आदमी एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर को, उसको खाली वो रैली में आया नहीं, वीजा नहीं मिला, तो रेक्स खुद फोन करके मुझे बात करता है। सो दैट वाज द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, मैं कभी नहीं भूल सकता है। बाद में मैंने उज्ज्वला को फोन किया, अरे कौन बात किया? उज्ज्वला बोली रेक्स बात किया। मैं बोला यार मैंने नींद में बात किया, मेरे को अभी याद भी नहीं। लेकिन दैट वाज, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे। दोस्तों, रेक्स के साथ कम से कम 15-16 बार इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि 2009 से कंटिन्यूस रैली अटेंड कर रहे हैं। रेक्स के हाथ से मैंने कम से कम 4 बोर्ड चेयरमैन बोनस चेक लिए, 4 चेयरमैन बोनस। थैंक्स टू माय अपलाइन, थैंक्स टू माय टीम, थैंक्स टू फॉरएवर। रेक्स, क्या बताओ रेक्स के बारे में? मुझे क्या ना शेयर समथिंग, मैं इधर कुछ फोटोग्राफ शेयर कर रहा। साइमन क्या ना शेयर? यस यू कैन। ओके, गिव मी मोमेंट। ये है, डू यू सी माय स्क्रीन? Yeah, but just enlarge the photos. हाँ, यस एनलार्ज किया है मैंने। जस्ट अ मिनट, हाँ। यस, ओके। तो आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स को।
एनलार्ज नहीं हुआ है, एनलार्ज नहीं हुआ है। इनलार्ज कैसे करने का, अभी इसको ये ऊपर से हो नहीं रहा है। डबल क्लिक कर दो फोटो पे ऊपर। हाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है, मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ से कहीं से। हियर यू कैन सी, कैन यू सी? नो नो, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा? नहीं। ओके, लेट मी स्टॉप एंड कम अगेन। Stop screen, yeah. Again, go Yes, again yes. and do it. So, guys, what fantastic experiences are being shared. ये अभी दिख रहा है? नहीं। अरे यार मेरे को इधर से No, no problem. No, you just close this. Yeah. Now, just press once screen share. हाँ यस, Screen share पे जाओ। हाँ एक मिनट। हाँ अभी आ रहा है? Wait. नहीं, लेकिन अच्छा अभी ये ऊपर का बंद करो, ये वाला ऊपर जो है ना, ये इधर बंद। ये देखो, ये टेक द या मिनिमाइज कर इसको। ये वाला ये मिनिमाइज कर। हाँ एक मिनट, मेरे को समझ में आया। देयर इज सम प्रॉब्लम। अभी मैं खाली इसको खोल देता हूँ। कैन यू सी नाउ? ओपन द फोटो। और ये स्क्रीन को भी बंद करना, ये वाला इधर बंद कर। ये बंद किया? नहीं, ये ऊपर का है, देखो ये जो है। अभी कुछ नहीं है ये। हाँ, मिनिमाइज कर, बिकॉज बिहाइंड दिस स्क्रीन इज योर फोटोज। ये अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, चलो मैं टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें मैं खाली इतना बात बोलना चाहता हूँ कि दैट वाज वन ऑफ द मेमोरीज। हम रेक्स के साथ ट्रिप में गए हैं, रेक्स के साथ खाना खाए हैं। रेक्स हमारे टेबल पे आके बोलता है कि फोटो खींचो। साउथ अफ्रीका का एक इंसिडेंस है। साउथ अफ्रीका में उसने कम से कम 1000 लोगों के साथ, माइंड मी, पूरी रैली खत्म हो गई, सब लोग चले गए, लेकिन 1000 लोगों के लिए वो स्टेज पे खड़ा रहा और सबके साथ उसने फोटो लिया, सबके साथ। वही फोटो मैं दिखाना चाहता था। दूसरा, रेक्स आज की दुनिया में हमने कभी बुद्धा को, जीसस को, पैगंबर को, महावीर को, इन लोगों को नहीं देखा। लाखों करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स हैं। रेक्स एक मॉडर्न बुद्धा है, इस युग का है, जिसने न जाने कितने लोगों का कल्याण किया, न जाने कितने लोगों के विचार बदले, जिंदगी बदली, ट्रांसफॉर्मेशन लाया और उनको नई जिंदगी दी। मतलब उनकी आने वाली पीढ़ियां अभी राज करेगी, आलीशान जिंदगी जिएगी, बढ़िया जिंदगी जिएगी। बदल के रख दिया इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, बदल के रख दिया एमएलएम इंडस्ट्री को, बदल के रख दिया लाखों करोड़ों लोगों को। रेक्स इज अ विजनरी पर्सन। और दुनिया में कहीं भी किसी भी इंसान को अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके लिए फॉरएवर रेक्स ने बनाया। चाहत जिसके पास है, कुछ भी हो, भले वो करोड़पति हो, तबीयत तो खैर चाहिए सबको, लेकिन कुछ भी चाहिए किसी को भी, तो उसको फॉरएवर में आना पड़ेगा। फॉरएवर हर एक की जिंदगी को टच करेगा। आज अगर कोई ना बोलेगा तो कल वापस फॉरएवर जाएगा, कल ना बोलेगा तो परसों जाएगा, ऐसा जाता ही रहेगा। फॉरएवर सबको टच करते रहेगा। थैंक यू रेक्स, थैंक यू वेरी मच। दैट्स व्हाट वी कैन से। और क्या बोल सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल एवरीबॉडी दैट आज का जो ये इवेंट है, इट इज ऑल थैंक्स टू प्रफुल, बिकॉज ये पूरा आइडिया प्रफुल का था। एंड व्हेन ही टॉक टू अस एंड मी एंड राजीव, देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो आज का जो मेन जो ऑनर देने चाहिए वो है प्रफुल के लिए। इन दिस वी विल कम बैक टू यू, सो मे बी यू कैन शो द फोटोग्राफ्स। अभी बाकी हम लोग आगे जाएंगे एंड एंड में विल कॉल यू बैक where you can show the photographs. So just keep your computer ready with those photos. We'll come back to you again. So as a special case, we'll come back. And now we'll have none. Let me get one of the top our guys with our team. That's Rajiv Mehta, who's got a fantastic experience also with Rex. So Rajiv, can we have you please on screen? Rajiv, you always are shining. Not just the face, even the head. Mostly the head. So Rajiv, as I told you, when Praful came with this idea, Rajiv and me, we worked out and we started planning it, but we didn't want to do publicity in advance because people might make some stories and it's something else. So we wanted it that our group should get this first info on Rex and the amazing experience that we have. So sorry Rajiv, screen is all yours. रेक्स मॉन द लेजेंड, क्या बोलने का, मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं इस इंसान के बारे में बात करने में। लेकिन
दोस्तों मेरा नाम राजीव है, राजीव मेहता, RM, रेक्समॉन, RM, सेम इनिशियल्स। ये शेयर करता हूं मैं रेक्समॉन के साथ, बट दी शेयरिंग स्टॉप्स देयर। वो जिस तरह का इंसान था, जिस तरह की शख्सियत थी, जिस तरह का उनका चरित्र था, अगर उसका एक कण भर, एक रत्ती भर भी मेरे में आ जाए ना, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अनुभव है उनके साथ। मैं आई वॉज लकी इनफ, प्रिविलेज इनफ टू हैव मेट हिम क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स। एक दो इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा, दो इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा इनफैक्ट। सी वो कितने बड़े इंसान थे, कितने बड़े, मतलब उन्होंने एम्पायर सेटअप किया, ये सब, लेकिन वो पर्सनैलिटी किस तरह की थी वो थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जब मेरा रिकग्निशन हुआ था इन हैदराबाद, उससे पहले मैं उनको मिल चुका था मुंबई में, तो जब हैदराबाद में स्टेज पे जाना था और मेरा सीनियर मैनेजर का, मेरा कार प्लान का और मिलियनर्स क्लब का तीनों रिकग्निशन था, और बहुत सारे लोग, जब रैली थी और बहुत सारे लोग थे, और स्टेज के ऊपर 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम मिलता है सिर्फ, जैसे सब लोग लाइन में जा रहे, 2 सेकंड रुकना है, फोटो निकालना है और निकलना है। अब लेकिन रेक्स से मिलना था और मेरे सब अचीवमेंट्स थे, तो मैं बहुत खुश था एंड आई वाज स्माइलिंग। नेचुरली कोई भी इंसान खुश होगा। तो जब मैं ऊपर गया स्टेज के ऊपर, तो ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट पे नाम तो बोला जा रहा था, बट रेक्स ने इमीडिएटली मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुराते हुए जब चल रहा था उसकी तरफ, उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और द फर्स्ट वर्ड्स ही सेड वाज बिग मैन फ्रॉम मुंबई। मतलब उसको याद था, राजीव मेहता नाम बुलाया जा रहा था स्टेज पे, लेकिन उसको याद था कि मैं मुंबई में उसको मिला हूं। दैट टाइप ऑफ मेमोरी सिर्फ मेरे साथ नहीं, इस तरह के अनुभव बहुत सारे एफबीओस को हुए। सेकेंडली, यू नो, हम लोग जब फोटो निकालते हैं, अब ये इंसिडेंट देखो, मतलब ये छोटी छोटी बात है, लेकिन मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे, मेरे दिल को छू गई वो चीज। अब जब फोटो निकालते हैं तो हम यूजुअली स्माइल करते हैं, लेकिन फोटोग्राफ के लिए स्माइल करना और हकीकत में जब वो खुशी होती है तो जो रियल स्माइल आती है ना, वो दोनों में फर्क होता है। और रेक्स ने वो नोटिस कर लिया। सोच लीजिए, इतनी सारी कैमरा, लाइट्स, ये वो, इतने सारे लोग, लेकिन रेक्स ने नोटिस कर लिया। अब मैं मुस्कुराया, 2 सेकंड लगते हैं, फोटोग्राफ निकाला और मेरा रिकग्निशन हुआ और मैं जा रहा था तो पीछे से रेक्स ने कंधे पे हाथ रखा। मुझे लगा यार कुछ मैं भूल गया, कुछ क्या हो गया, तो मैं पलट के देखा। रेक्स ने थोड़ा नजदीक आके मुझे कान में कहा, मतलब धीरे से कहा। सोचिए, मतलब वो मोमेंट सोचिए, जब इतने सारे लोग, पीछे लोग खड़े हैं, हजारों लोग लाइन बाय लाइन से एक के बाद आ रहे हैं, एक एक सेकंड का, एक एक पल का टाइम मिलता है, लेकिन रेक्स ने नजदीक आके मुझे कहा, नेवर लूज दैट स्माइल, बिग मैन विद अ बिग स्माइल। अब ये इतने छोटे से वर्ड्स, लेकिन इमेजिन करो, उसने सामने वाले के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए, उसने सामने वाले के, मतलब ये रेक्स का जो चरित्र, आई डोंट हैव द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस, बट मुझे उस दिन लगा कि रेक्स ने ऐसे माहौल में भी सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो चीज को जानने की, मतलब वो इमीडिएटली उसने समझ लिया कि सामने वाला कितना खुश है। वो उनकी क्वालिटी बहुत खास थी। जैसे उनके वर्ड्स जो हम लोग कभी कभी स्लाइड्स में भी यूज करते हैं, केयर मोर देन अदर्स थिंक इज वाइज, ही वाज द पर्सन हु रियली केयर्ड। वो जो रेक्स के वर्ड्स है ना, द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। रेक्स वो इंसान थे जो हकीकत में ही ट्रूली लव्ड ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। ये बात मुझे उनके जो, मतलब ही वो सुपर रिच, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, ये सब के पीछे जो पावर था ना, वाज लिटरली फ्रॉम हिज हार्ट, द पावर ऑफ लव फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। ये चीज मुझे बहुत खास लगती थी रेक्स के बारे में। एक और मतलब शॉर्ट टाइम है, लेकिन एक और वाकया में, मतलब जस्ट एक दर्शाने के लिए कि रेक्स किस तरह का व्यक्तित्व था। वो मुंबई आए थे एक बार, आई थिंक दैट वाज 2010, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुंबई में आए थे। मुंबई ऑफिस में अनाउंसमेंट था कि रेक्स आने वाले हैं और टाइम दिया गया था 4 बजे का, या आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, बट उससे 1-1.5 घंटे पहले मैनेजर्स की मीटिंग रखी थी रेक्स के लिए। जो लोग ने मुंबई ऑफिस देखी है, तो मुंबई के 2nd फ्लोर पे सेमिनार हॉल है, और सेमिनार हॉल में मैनेजर्स की मीटिंग थी। तो हम लोग सब मैनेजर्स, ट्रेनर्स वगैरह जो लीडर्स थे, उनको मिलने का मौका मिला था रेक्स को। वो 1-1.5 घंटे पहले हमें बुलाया गया था, लेकिन जब उनका टाइम दिया था 4 बजे का, तब तक हमारी मीटिंग खत्म हुई, हम लोग नीचे आए, तो मुंबई ऑफिस का जो ग्राउंड फ्लोर था वो इतना खचाखच एफबीओ से भरा हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं, मुंबई की लोकल ट्रेन या विराट फास्ट के अंदर जो रश होता है ना, वैसे लोग भरे हुए थे नीचे, क्योंकि सबको मिलना था रेक्स से।
अब हम लोग देखे, हम लोग तो मतलब दंग रह गए, पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन ऑफिस, लेकिन एसी का तो मतलब पता भी नहीं चल रहा था, इतने लोग भरे, सब लोग को उत्साह था कि रेक्स को मिलना है। रेक्स जैसे नीचे आए, लिफ्ट का दरवाजा खुला, उन्होंने देखा ये रश, मतलब जिन्होंने मुंबई ऑफिस देखा है वो जानते हैं, लिफ्ट में से एग्जिट का दरवाजा 3 कदम है, वो चाहते तो निकल जाते थे और वो निकल जाने वाले थे, लेकिन वो रश देखा, वो इमीडिएटली वापस लिफ्ट में चले गए और ऊपर चले गए। और हम लोग को लगा ये रश देख कर अब रेक्स नहीं मिलेंगे बाकी सब लोग को, और पूरी टीम खड़ी थी, मैं सब लोग को बोल रहा था, मैं बोला यार ये अभी शायद तुम लोग को मौका नहीं मिलेगा रेक्स से मिलने का। 10 मिनट के बाद रेक्स नीचे आए, उनके साथ में कंपनी का फोटोग्राफर था, तभी के जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर अमरजीत सर थे, बाकी स्टाफ था, और ऑफिस में बीच में एक स्ट्रक्चर था, सर्कुलर स्ट्रक्चर ग्लास ब्रिक्स का, उसके बीच में जाके खड़े रहे और हर एक एफबीओ को बोला गया कि आपको जिसको भी मिलना है रेक्स को, रेक्स इंडिविजुअली मिलेगा। बोलो फोटो निकालने की जरूरत नहीं, कंपनी का फोटोग्राफर हर एक शख्स के साथ में इंडिविजुअल फोटो निकालेगा और वो फोटो आपको कल इंटरनेट पे डाउनलोड करने को मिल जाएगी। जस्ट इमेजिन करो, करीबन 3-3.5 घंटे वो इंसान ने मतलब वहां खड़े रह के हर एक एफबीओ के साथ में इंडिविजुअली पिक्स निकाले, हर एक एफबीओ के साथ। आई नो जितने लोग पुराने हैं ना, वो ये चीज को याद, वो इंसिडेंट को याद करते थे। मैं साइड में खड़े रह के देख रहा था, ऑफ कोर्स मेरी टीम में भी सारे लोगों ने निकाले, मैंने भी फोटो निकाला, बट एक चीज मैं जस्ट देख रहा था, इतने रश के अंदर वो एसी का पता भी नहीं चल रहा था। अब रेक्स ऑलमोस्ट 6 फुट उनकी हाइट, गोरे चट्टे, वो पूरे लाल लाल हो गए थे, पसीने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक भी पर्सन को मना नहीं किया, किसी को घाई नहीं किया, बड़े सब्र के साथ, बड़े प्यार से हर एक एफबीओ के साथ उन्होंने पिक निकाली, और जब तक हर एक लास्ट एफबीओ तक उन्होंने किसी के साथ घाई नहीं किया, हर एक से उतने ही प्यार से मिल रहे थे। मतलब वो जो उन्होंने किया, उनको क्या जरूरत थी, बट दैट इज द लव ही हैड फॉर ईच एंड एवरी एफबीओ। इस तरह के इंसान की कंपनी में होना, मैं समझता हूं बाय इटसेल्फ इट इज अ प्रिविलेज टू बी इन अ कंपनी क्रिएटेड बाय अ लेजेंड लाइक रेक्समॉन। आई थिंक मेरे शॉर्ट टाइम में मैं इतना ही कहूंगा, बट 100% मैं एक बात डेफिनेटली कहूंगा, इट हैज बीन अ प्रिविलेज इन माय लाइफ टू हैव इवन मेट दिस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, कि इनके संपर्क में आया हूं। जब भी जो भी इंसान रेक्स के आसपास में आया है ना, वो एक बात डेफिनेटली कहेगा कि उनके आसपास में एक ऑरा रहती थी, एक करिश्मा था उनका, उनके जो वाइब्रेशंस आजू बाजू में आते थे ना, हर एक इंसान को छूते थे। ही वाज रियली स्पेशल। आई थिंक आई इससे आगे ज्यादा वर्ड्स नहीं है मेरे पास। थैंक यू सो मच साइमन के ये मौका दिया। आई थिंक दैट्स ऑल आई वांट टू शेयर। आई थिंक इट वाज ऐसे तो अमेजिंग, बहुत सारी मेमोरीज है, बट आई थिंक ही वाज एन अमेजिंग पर्सन। fantastic, Rajiv, thanks a lot. As we have a lot of other speakers also, and guys, sorry थोड़ा हम लोग का शायद टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा, but in Rex's case we have to, because this is one of the best things that all our distributors will give knowledge. तो शायद हमारा टाइम ज्यादा जाएगा, but we'll not waste much time. So we'll have one of our top beauty trainers जो स्पेशली स्किन ट्रेनिंग में बहुत एक्सपर्ट है और very knowledgeable. Her name is Jyoti Bharti. So I think we'll not waste time. Let's get things rolling. Remember, इसके बाद भी एक प्रफुल्ल का भी एंड में हम लोग 2-3 फोटो देखेंगे, और उसके बाद एक वीडियो भी लगाने वाला हूँ जो जबरदस्त है। आपको याद रहेगा किस टाइप का challenges जो रेक्स को आए थे, वो भी वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वो एंड में रहने वाला है। एंड आफ्टर दिस ऑल यू वांट टू लीव, इट्स ओके, बट आई वुड सजेस्ट पूरा वीडियो देख के जाओ, भले घर पे खाना खाओ, नो प्रॉब्लम, नहीं तो अभी तो हम लोग को जाना पड़ेगा ज्योति के घर पे खाना खाने। सो ज्योति जी नमस्ते, थैंक यू फॉर कमिंग एंड वेलकम। Thank you so much, sir. Thank you so much for this wonderful opportunity. ज्योति, आपका आपने मुझे मौका दिया। रेक्स के साथ जो आपका एक्सपीरियंस था, कैन यू प्लीज शेयर? सर बहुत शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो रेक्स का एक फिलॉसफी था, ये वो हर वक्त बोलते थे, द पावर ऑफ फॉरएवर, द पावर ऑफ लव, स्प्रेड द लव इन होल वर्ल्ड। तो वो हर जगह ये तो है कि उनके जैसे सर ने बोला कि उनका वो ऐसी पर्सनालिटी थे, ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे इस टाइप के जो इंसान होते हैं धरती पे बहुत ही रेयर जन्म देते हैं, और उनका जो मकसद होता है वो आम लोगों से बहुत बहुत अलग होता है।
और रेक्स सर से मैं पहली बार मिली थी, मुंबई में ही मिली थी। उनके साथ में मेरी पिक्स भी है, अभी भी मेरे पास में, मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। और 2-3 बार ऐसा रहा है कि उनके साथ में मिलने का मौका मिला, लेकिन उनके पास जाते ही ऐसे लगता सारी निगेटिविटी बॉडी से बाहर हो जाती, तन बदन में ऐसे लगता बस एकदम एक्साइटमेंट, एकदम प्यार, एकदम वो सारी चीजें कि ऐसे लगता है इस व्यक्ति के साथ में ही रह जाओ, इनके साथ में ही रह जाओ। इस तरह की वो पर्सनालिटी थे। शायद वो एक ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो बोलते हैं कि भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन हमने किसी न किसी रूप में किसी भगवान को देखा है, जिसने हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा, हम सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। और रेक्स सर का सबसे बड़ा लाइफ का जो गोल था, 2 गोल थे वो। पहला गोल था बेटर हेल्थ, अच्छी सेहत, और दूसरा गोल था फाइनेंशियल फ्रीडम। वो ऐसे व्यक्ति थे जो ज्यादातर उनकी जो लाइफ है, ज्यादा वक्त है, पूरी जिंदगी, ये मान के चले कि पूरी जिंदगी का उनका जो मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करना, उनकी लाइफ, उनके सपनों को पूरा करने में। तो उनका लाइफ ज्यादातर जो डेडिकेट हुआ है वो दूसरों की मदद करने में। और जब मदद की बात करते हैं तो बहुत बड़ा योगदान रहा है चैरिटी में उनका, पूरे वर्ल्ड में। बहुत बड़े बोलते कि दाता एक टाइप के थे, हर तरीके से दे देते थे, कभी लेने का तो सोच भी नहीं सकते, सिर्फ देने का मकसद ही था, सिर्फ देना और देना और देना। मैंने उनके वो ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे इंसान थे कि जैसे सबने बताया कि शब्द कम पड़ जाएंगे उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ उनके लिए लिखा हुआ है, और मुझे लगता है इन चंद लाइनों में उनके मैं पूरे किरदार को मैं बता सकती कि वो कैसे व्यक्ति थे। तो थोड़ा सा मैं कुछ लाइनें बोलने की कोशिश करती हूँ उनके बारे में। जब भी मेरा किरदार बताया जाएगा, दावा है वो असरदार बताया जाएगा। मैंने बोए हैं कितने ही अनकहे एहसास, मुझे नई फसलों का जमींदार बताया जाएगा। जितना भी पाया अपनी मेहनत से पाया, रकीबों में भी मुझे खुददार बताया जाएगा। ना कोई लाग, ना लपेट, ना कोई छींटा कसी, मेरी सीरत को धारदार बताया जाएगा। कल को अगर मैं ना भी रहा तो क्या होगा, कल को अगर मैं ना भी रहा तो क्या होगा, पर मेरी बातों को जानदार बताया जाएगा। थैंक यू रेक्स, थैंक यू सो मच सर। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है, और मैं अंदर से थोड़ा सा अजीब सा ही थोड़ा सा फील हो रहा है, बट इतना मैं जानती हूँ कि वो जहां भी हैं उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ में हमेशा रहेगा, फॉरएवर रहेगा। थैंक यू सर। Thank you, Jyoti. It was amazing and very outstanding. And I noticed कि आप जो हमारे जो ट्रेनिंग भी करते हैं, आप रेक्स को हर टाइम थैंक यू करते हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आप आए थे और आज कुछ एक्सपीरियंस दिया। तो हमारे जो आज के एज यू नो 11 स्पीकर्स है, तो हम सबको जस्टिस करना चाहते हैं, तो विल नॉट वेस्ट टाइम एंड विल वांट टू गेट भरत एंड बीना शाह, जो हमारे घर के फैमिली जैसे हैं, और हम जो अब्रॉड जाते हैं, भरत एंड बीना आर लाइक अ फैमिली मेंबर्स। तो भरत एंड बीना, थैंक्स फॉर कमिंग, वेलकम, एंड द स्क्रीन इज ऑल योर्स। थैंक यू। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज। हाय एवरीवन, आज रेक्स के बारे में बोलना है, तो मैं तो बोलूंगी शब्द कम पड़ जाएंगे रेक्स के बारे में बोलते हुए। जब तकलीफ का टाइम था तो मैं हमेशा भरत से यही कहती थी कि भरत, 7 समंदर पार से अनजानी शक्ति आएगी और हमारी जिंदगी की नैया को पार लगा देगी, क्योंकि हम जिस समय फॉरएवर के साथ जुड़े उससे पहले जीवन कंप्लीटली अंधकार में था। और सही मायनों में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी रेक्स सर का तहे दिल से कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जहां पे हम जैसे साधारण लोग भी असाधारण काम करके करते हैं और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता है। और सच में 7 समंदर पार से अनजानी शक्ति आई और जिसने हमारी जिंदगी की नैया को पार कर दिया। और हर बार जब उनको मिलने का अनेकों अवसर मिले, हमें उनको मिलने के, कुछ फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करेंगे,
और हर समय जब हम उनसे मिले, जैसे कहते हैं ना कि एक ऑरा उनके आसपास था, एक पॉजिटिव एनर्जी, और दूसरा उनका कहना था द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। आप और उनका ये कहने पे वो खुद इतने, यानी वो लोगों के दिलों को जीतते थे। एक साधारण आदमी, एक साधारण इंसान से भी वो इस तरह से मिलते थे कि जैसे वो कुछ खास हो और उसको खास महसूस कराते थे। और उनका जो वो ऑरा है वो हमें भी लगता था। और आइए कुछ फोटोग्राफ्स हमारी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम बहुत सारे पल उनके साथ गुजारे हैं। अनेकों मौके मिले हैं जब हमने उनको, जैसे उज्ज्वला ने कहा कि हमें नाम से पुकारते थे। एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के रेक्स मॉन ने, जिन्होंने इस कंपनी को स्थापित किया, उन्होंने, हर एक इंसान का एक सपना होता है कि वो जिंदगी में जिए, अच्छे से जिए। तो सही मायनों में जिंदगी को जीने का मौका हमने दिया और उस मौके को हमने दोनों हाथों से अपनाया और हमारी जिंदगी चेंज हो गई। तो ये कुछ पल है रेक्स के साथ जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा, द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। जितना आप प्यार बांटोगे, जितना आप लोगों से बातें करोगे, जितना आप फॉरएवर का जो मैसेज है, जो रेक्स सर ने ये कंपनी बनाते हुए रखा है कि बेटर हेल्थ एंड बेटर वेल्थ फॉर एवरीवन, और वो सबसे पहली चीज, वो सब कैसे हो सकता है पॉसिबल, जब आप लोगों के दिलों को जीतते हो तो बिजनेस अपने आप आता है। ओके, तो कुछ मेमोरीज हम उनके साथ शेयर करते हैं आपके साथ। ये उस समय का फोटोग्राफ है जब हम मैनेजर बने थे 2002 में, और जब पहली बार मौका मिला और रेक्स सर आए महाराजा के रूप में, और उनको जब हम पहली बार मिले तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है। भरत, मेरा भाई, मेरा बेटा यश और मेरी माँ, क्योंकि हमारी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो गई थी और वो इतने प्यार से मिले कि पूछो मत। एक यादगार पल है हमारा ये फोटोग्राफ। आगे हम बढ़ते हैं। हर टाइम, यानी मैनेजर वर्क, सोरिंग मैनेजर के समय उनके साथ ये मौका मिला, उनके साथ स्टेज शेयर करने का। और मेरे लिए तो ये खास मौका था जब 2011 में मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था। दो मौके थे, एक तो हम जब लंच करते थे तब वो हमारे टेबल पे आए थे, पीछे से खड़े हो गए थे प्रेजेंटेशन के बाद, और जब स्टेज पे जब मैंने मुझे अवार्ड देने के लिए वो आए तो मुझे कहा, बीना, वेरी वेल डन, वेरी वेल स्पोकन, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड कीप ऑन स्माइलिंग। और ये 2007 से शुरू हुआ हमारा इंटरनेशनल रैली का सफर, और हर बार जब भी इंडिया से हम गए तो उनके साथ मौका मिला। और ये पल तो मैं और भरत, उनकी ऑफिस का जब हम विजिट किए थे, 3 बार विजिट किए हैं रेक्स की, और हेड ऑफिस में विजिट किए हैं, और मौका मिला है उनके साथ बैठने का, मिलने का। और वो हर एक एफबीओ को बोलते थे, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, सिट इन माय चेयर। तो हमने कहा, सर वी रिस्पेक्ट यू एंड योर चेयर, तो यू सिट, वी विल स्टैंड विथ यू, बिसाइड यू। तो बोले, नहीं, आई विल स्टैंड विथ यू, और हमारे साथ में खड़े होके ये फोटोग्राफ है। एक यादगार पल है, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनका जो अपनापन, हर एक व्यक्ति से मिलने का, वो अलग ही अनुभव था। 4000 लोग पहुंचते थे, 4 कलाक की। उस दिन भी जैसे राजीव जी ने शेयर किया, कितने भी एफबीओज वो हो, कितने भी लाइन में, हम 4000 लोग थे उस दिन, एक के बाद एक बसेस आ रही थी, और वो हर एक जन से पेशेंटली उनको पूरा टाइम देते हुए खड़े रहते थे। यानी मैं कहूँ ना कि एक इंसान में इतनी सारी, यानी वो जो शख्सियत, मेरे पास शब्द नहीं है तो बयान करने के लिए, लेकिन अमेजिंग 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 पर्सनालिटी, और जिन्होंने हमारी जिंदगी चेंज कर दी। और मौका मिला, बहुत बार मौका मिला उनके साथ स्टेज शेयर करने का, और ये पल तो साइमन जी भी हमारे साथ थे। और जिस पल हम एज ए नंबर 1 एफबीओ पर्सनल एंड ओपन हाउस सीसी, जब वो स्टेज था, क्राउड था हमारे सामने, 14,000 के ऊपर लोग थे ऑस्ट्रिया वियना में, और वो था, तो वो देख सकते हो कि वो कैसे मिलते थे, और कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से
मिलते थे और रियली शब्द नहीं है और वो स्टेज। और ये मौका तो मैं भूलूंगी नहीं। 2 बार इंसिडेंट ऐसे हुए। पहले 2007 में हम जब सीजर पैलेस, लास वेगस में सीजर पैलेस होटल में फाउंटेन के पास खड़े थे और पीछे से हमें टैप किया और जैसे ही हम मुड़े तो रेक्स सर थे। तो मैं और भरत, रेक्स, तो वो बोलते हाय बीना शाह एंड भरत शाह मुंबई, सीधा नाम से बुलाया। यानी वो हमें उससे पहले भी मिल चुके थे इंडिया में और सीधा नाम से बुलाया उन्होंने। और ये मौका सिंगापुर में हम लोग कन्वेंशन सेंटर से यहाँ मरीना बे सैंड में से अंदर से जा रहे थे कन्वेंशन सेंटर, वहां पे वो अकेले घूम रहे थे और वहां पे भी उन्होंने हमें खड़े हुए और हमारे साथ ये फोटोग्राफ है सिंगापुर में। आई नो यू बीना एंड भरत शाह फ्रॉम मुंबई, यानी नाम से बुलाते थे। और मैं बोलने गई कि आई एम बीना शाह फ्रॉम मुंबई, मैं बोलने जा रही थी, उतने में वो बोलते आई नो यू। इस तरह से वो मिलते। और ये कुछ बोनस चेक हर बार उनके हाथों से 2007 से लेके 17 तक हमने कुछ चेक्स उनके साथ, फोटोग्राफ्स है, ये यादगार पल है हमारे उनके साथ में। और हर बार कीप द गुड वर्क, keep on doing the good, keep on sharing with more and more people, ये कहते रहते थे। और ये सारे, और ये पल लास्ट जब वो इंडिया आए थे, मेरे ख्याल से इसके बारे में भरत बोलना चाहेंगे। ये मैं स्टेज के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन खत्म करके नीचे उतरा तो वो इतने प्रभावित हो गए थे कि अपनी चेयर को छोड़ के वो स्टेप्स के पास आके हमें ग्रीट किया और हमें हमारा सत्कार किया, हमें शाबाशी दी और इतने हम उनके ग्रेटफुल थे। और ये वो स्टेप्स के बाजू का ही वहाँ पे हमारा ये फोटोग्राफ है। यानी वो समय हमें एक मौका मिला था कि हमारी स्टोरी 2015 में जब वो लास्ट विजिट किए थे इंडिया में, कि हमारी स्टोरी शेयर करने का मौका मिला था और वो मोमेंट हम भूल नहीं सकते। और ये जैसे मैंने कहा ना सिंगापुर का, तो आके पीछे से खड़े हो गए और बोला वेरी वेल डन बीना, वेरी वेल डन। तो ये कुछ पल थे, कुछ फोटोग्राफ्स थे। कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे हॉल में भरे हुए लोग रहते थे फॉरएवर के, और ये बोलता था कि रेक्स सर बोलते थे कि आप है ना मेरे पास मत आओ, मैं आपके पास आऊंगा। और हर एक के टेबल पे जाके वो सबके साथ मिलते थे और फोटोग्राफ निकालते थे और सबको ग्रीट करते थे। ये वही फोटोग्राफ्स है, ये वही फोटोग्राफ्स है। और यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि वो कहते हैं अभी, हाँ, और एक इंसिडेंट भरत शेयर करना मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा कि हम लोग साउथ फोक रैंच यूएस में हम घूम रहे थे, घूम के थक गए थे और गेट के लॉबी के बाहर हम लोग खड़े थे। तो अचानक से रेक्स और 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स आए, 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स आए, उसमें 3 ब्राजीलियन थे और बाकी दूसरे थे। और हमें उनका जो रथ था ट्रैक्टर टाइप का, वो रथ के बिसाइड में हम खड़े थे। तो हमको देख के बोला भरत शाह एंड बीना शाह गेट इन। तो उनका हुक्म था तो हम टाल नहीं सकते थे, उनके साथ में हम रथ में बैठ गए, उनके ट्रैक्टर में बैठ गए और पूरा वापिस से पूरा रिसोर्ट, हम पहले घूम चुके थे, वापिस से पूरा रिसोर्ट हमने उनके साथ में ट्रैवल किया। और एक जगह पे आके रुके थे हम, एक घोड़े का तबेला था, एक स्पेशल टाइप का घोड़ा था, उनका पेट था, एकदम फेवरेट था। और वहाँ हम लोग उतर के वो इसके पास गए, घोड़े के तबेले के पास गए और वहाँ खड़े रहे। तो वहां से दूर से जो केयर टेकर था, उसका नाम था अलेक्जेंडर, वो दौड़ता हुआ आ रहा था। तो रेक्स ने उसको आवाज दी, कम फास्ट अलेक्जेंडर, कम फास्ट। और नजदीक आने के बाद में उसे रेक्स ने बोला, हाउ इज योर डॉटर, लास्ट ईयर व्हेन आई केम शी वाज नॉट फीलिंग वेल, हाउ इज शी नाउ। अभी 1 साल पहले जब वहां पे विजिट किया था तब की उसको बात याद है। एक मामूली सा मुलाजिम है जो घोड़े का केयर टेकर है, उसका नाम से उसको बुलाता है। और उसकी बेटी की तबीयत बराबर नहीं थी, उसको याद है। हमारे आंख में पानी आ गए। उसके बाद में वो केयर टेकर ने हमारे सबके हाथ में है ना एप्पल दिए और वो एप्पल लेके घोड़े को खिलाने लगे। तो रेक्स सर जब घोड़े को खिला रहे थे तो घोड़े को पेट करते हुए बोल रहे थे कि सॉरी बेबी, आई गेट ओनली 1 डे इन अ ईयर टू गिव यू टू फीड यू, आई एम वेरी सॉरी करके उसको घोड़े को खिलाने लगे। तो इतने डाउन टू अर्थ थे, उनको पेट से, जानवरों से भी इतना ही प्यार था, हम लोगों से भी इतना ही प्यार करता था। और उनके जो एम्प्लॉइज थे उनसे भी इतना प्यार करते थे। उनके कई ऐसे
किसे जो बताने मतलब टाइम कम पड़ेगा। और एक बात खाली अभी लास्ट में एंड में यही कहूंगी, आज जो वो मिसाल हमें हमारे हाथ में दी है, टॉर्च जो उन्होंने हाथ में दी है, स्प्रेड द गुडनेस, शेयर द अपॉर्चुनिटी, बस हमारे जिंदगी का यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम शेयर करें फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी जो हमें रेक्स सर ने दी है, एंड द लेगेसी, द पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, साइमन, टू शेयर। Yeah, thank you. Welcome, Bharat and Beena. Amazing stories and excellent. It was fantastic testimony with all those photographs that you showed was superb, and the memories that we have are fantastic. But as we know, the show has to go on, and I want more and more people to come. So I'll not waste time. And if we can have Jayesh, we can have you. Thank you. Yes. Can you hear me? Hello. Yeah, I can hear you. I can see you. Good. Jayesh, first of all, yes. thanks a lot for coming and joining us. ये fantastic day के लिए, तो the screen is all yours. You can share something. Thank you, Simon. It's a privilege that you gave me a chance to talk about Rex. और मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगा कि कुछ चीजें ऐसी है ना जो मैं शायद हिंदी में अच्छी से बता नहीं पाऊंगा, इसके लिए कुछ इंग्लिश में लिखा है उनके लिए मैंने। Forever Living Products has lost a visionary, and the world has lost an amazing human being. Those of us who have been fortunate enough to know and work with Mr. Rex Mon have lost an inspiring mentor. He leaves behind a company that only he could have built. His spirit will forever be the foundation of Forever Living Products. I have not got an opportunity to interact with him much, but from whatever I have heard, he seemed to be a very sweet, caring, and a down-to-earth person. इन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट की है, हजारों करोड़ों लोगों के लिए 160 क्या दुनिया में, ना सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, लेकिन साथ साथ में आप खुद बढ़े आगे और साथ साथ में हेल्दी भी रहे, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने हम सब के लिए क्रिएट की है। मुझे उनको 2 बार मिलने का मौका मिला था पर्सनली। जब वो मुंबई ऑफिस आए थे तो सिर्फ मेरे पास तो उनके लिए मिलने का एक ही फोटो है। जैसे राजीव जी ने कहा था कि वो जब मिलते थे ना तो वो वार्मथ पास ऑन करते थे, वो पता चलता था, वो ऑरा बोले, जो भी वर्ड्स उसके लिए यूज करो, वो एक अलग है। सिर्फ एक मेरे पास फोटोग्राफ है, वो फोटोग्राफ को देखेंगे ना कि किस तरह से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो वही एक स्क्रीन में शेयर करना चाहूंगा फोटो। साइमन प्लीज। Yeah, you can share the screen. Yeah. So just a minute. Yeah. ये देख सकते हैं, देखो किस तरह से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा हो। एक सीईओ जो कोई और कंपनी का रहे तो उन्हें आप मिलने भी नहीं जा सकते, ऐसे एक ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि मैं तो तभी एक डिस्ट्रीब्यूटर ही था, शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैनेजर बन चुका था या नहीं। एक सेकंड, वो फिर से स्क्रीन में से फोटो चले गया मेरा, स्टॉप करके फिर से करता हूँ। हाँ, तो एक ऑर्डिनरी एफबीओ से भी वो इस तरह से मिलते थे। आई एम सॉरी, कुछ टेक्निकल चैलेंजेस आ रही है, मैं स्टॉप ही कर देता हूँ। तो बस यही कहना चाहूंगा, और मैं तो लास्ट वर्ड्स में यही बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में मैंने कुछ अच्छा किया होगा करके ही मुझे ये फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मिली और रेक्स सर को मिलने का मौका मिला। तो जितने भी जन आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब जन एक फॉर्चुनेट हो कि एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हो जिनके पास एक दिल हो, और रेक्स सर हमारे साथ जिंदगी भर रहेंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स की यादें हमारे साथ रहती है, वैसे रेक्स सर भी रहेंगे। एंड मैं इतना ही कह रहा हूँ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, एंड यू मिस्टर रेक्स, यू ऑलवेज बी इन आवर हार्ट। थैंक यू सो मच।
Thanks a lot, Jayesh. You have been fantastic, and even for being a member of the Forever team FLP team core. So Yes, for my us, privilege, sir. My you've privilege. really been a asset for us, and you've been fantastic. But we have more speakers coming now. Yeah. If you can have Santosh, Santosh, if you can have you, please. Yeah. Can you hear me? Yeah, I'll just spotlight you 1 minute. Yeah. Okay, Okay, Santosh. मेरे I आवाज have आ रही है? your Santosh. Screen is all yours. Thanks Okay, a lot for coming and even being a part of FLP team core. Thank you. Yeah, thank you, Simon sir, and thank you for giving me this opportunity to speak about. जैसे ही आपने मैसेज डाला था कि रेक्स सर के बारे में बात करनी है, मैंने जैसे ही देखा, मैंने इमीडिएटली मैंने ये किया कि मुझे बात करनी है, क्योंकि रेक्स सर के साथ मतलब इतना साल का पुराना रिश्ता है, तो कम से कम 17 साल अभी हो जाएंगे। मैंने 2004 में जब मैंने ज्वाइन किया, मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, तो मेरे बिजनेस की मुझे जान थी, मैं बिजनेस में ही था। लेकिन जब मैं फॉरएवर में आया था, तो फॉरएवर में आने के बाद मैंने जब ये बिजनेस सब कुछ देखा, मैंने मार्केटिंग प्लान देखा, उसके बाद मुझे सबसे पहली बात जो अट्रैक्ट की फॉरएवर को, वो ये थी कि ये बिजनेस टोटली एथिकल है। मतलब इसमें किसी को फंसाना नहीं है, किसी को टोपी नहीं पहनानी है, किसी को चीट नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बात मुझे अट्रैक्ट की फॉरएवर को, और मैंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं दूसरे दिन मैंने प्रोडक्ट भी नहीं देखे, दूसरे दिन मेरे 2 सीसी करके मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर पोस्ट ले ली, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था, इतना मुझे अच्छा लगा था। और सबसे बड़ी बात थी एथिकल बिजनेस, और ये एथिकल बिजनेस बनाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है मिस्टर रेक्स सर को, क्योंकि उन्होंने ये मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया था कई साल पहले, और ये इतने सालों से 43 ईयर से ये प्लान काम कर रहा है, एथिकली ये बिजनेस चल रहा है। ओके, और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 5-6 साल पहले गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गाइडलाइंस बनाई, मतलब एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसा होना चाहिए, उसके गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बनाई। और ये गाइडलाइंस आने के बाद, क्योंकि इंडिया में कई सारी ऐसी बोगस फ्रॉड कंपनियां चल रही थी जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे फ्रॉड कर रही थी, लेकिन जब ये गवर्नमेंट ने जब गाइडलाइंस निकाले, तो ये सब गाइडलाइंस जो है उसमें से 90% जो गाइडलाइंस जो है वो रेक्स सर ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे 1978 से। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि रेक्स सर के दिमाग में जो भी था वो कितना एथिकल माइंड था, मतलब किसी को फंसाना नहीं है, एक अच्छी चीज किसी को देनी है, एक अच्छा लाइफ किसी को देना है, और वो लिटरली वो करते थे। एंड ही वाज नॉट ओनली टॉकिंग, ही वाज वॉकिंग द टॉक। ओके, तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई फॉरएवर के साथ। और जब मैं 2 साल में मैं मैनेजर बन गया, और 2 साल में मेरा तो इंटरेक्शन हुआ नहीं रेक्स सर से, लेकिन मन में ऐसा था कि मुझे इनको मिलना है, किसी तरह से मिलना है। और देखिए कैसा हुआ, जब मन में कोई बात रहती है ना, जो हमेशा उसके जो एक्चुअली रियलिटी में आ जाती है, तो क्या ऐसा हुआ कि तभी 2006 में मैं मैनेजर बना, 2000 मार्च में मैं मैनेजर बना, 2006 मार्च में। और तभी ऐसा होता था, हर 2 महीने में सक्सेस डे होता था, और वो सक्सेस डे में पिछले 2 महीने के जो भी अचीवर्स है उनका रिकॉग्निशन होता था। मेरा ऐसा हुआ, तभी कंट्री सेल्स मैनेजर से रिकॉग्निशन होता था, लेकिन मेरा अचीवमेंट मार्च महीने में हुआ, और इमीडिएटली उसके बाद प्रीसीडिंग मंथ में अप्रैल और मई महीने में सक्सेस डे होने वाला था, लेकिन मई महीने में प्रॉफिट शेयर रैली हुई थी, और प्रॉफिट शेयर रैली दिल्ली में थी। ओके, तो दिल्ली में लकीली मेरा लक देखिए, मुझे उनको मिलना था, और दिल्ली में रेक्स सर आने वाले थे, और रेक्स सर आए, और वो प्रॉफिट शेयर रैली में मेरा रिकॉग्निशन, मैनेजर का रिकॉग्निशन रेक्स सर के हाथों हुआ। ओके, तो ये मैं लकी समझता हूँ खुद को, कि मुझे वो चाह थी अंदर से, मुझे वो एक ये लग रही थी कि मुझे रेक्स सर को मिलना है, और मेरा रिकॉग्निशन उनके हाथों हुआ। उसके बाद 1-2 साल के बाद मिलेनियर्स क्लब में मेरी एंट्री हुई, तभी भी हमारा रिकॉग्निशन उधर हैदराबाद में हुआ, और वहाँ पे रेक्स सर भी थे, और हमारा खास डिनर था उनके साथ आईटीसी होटल में, 5 स्टार होटल में। तो वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, वो हमेशा खुद टेबल पे जाके हम सबको आके मिलते थे, पूछताछ करते थे, और बहुत ही केयरफुली, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ऊपर से बात करनी है, फ्रॉम हार्ट ही वाज टॉकिंग। और ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया उनके साथ रह के, उनकी हमेशा बातें, और कई सारे बाद में भी कई सारे बार मुझे उनको मिलने को मिला, और वो ऑरा जैसे सब लोगों ने ऑलरेडी कहा है, किस तरह से सबके साथ पेश आते हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं,
ये सब कुछ है, लोगों के साथ फोटो निकालते, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे वो साथ में रहते, फोटो निकालते, ना नहीं कहते। तो ये सब चीजें सब लोगों ने एक्सपीरियंस की। उनके हमेशा उनके कोट्स जो है, जैसे अभी सब लोगों ने कहा, द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव। आप लव शेयर कीजिए, और वो फॉरएवर के साथ लिटरली हम लोग लव शेयर कर रहे हैं, विद प्रोडक्ट्स, विद बिजनेस प्लान, सबके साथ लव शेयर कर रहे हैं, किसी को सुखी बना रहे, किसी को अच्छा लाइफ दे रहे हैं। तो ये सब उन्होंने पैदा किया है। और दूसरा एक उनका कोट्स मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वो हमेशा कहते थे कि इफ यू आर नॉट डूइंग फन इन FLP देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ये बहुत ही पावरफुल उनके वर्ड्स थे। फॉरएवर का जो प्लेटफॉर्म, उन्होंने जो प्लान जो बनाया है, वो इतना पावरफुल है, इतना एथिकल है कि अगर इसके साथ अगर जेन्युइनली अगर आप काम करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी हैविंग फन, आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। इसलिए आजकल ये मैसेज मैं भी देना चाहता हूँ कि फॉरएवर के साथ जुड़े रहिए, लेकिन एथिकली बिजनेस कीजिए, क्योंकि रेक्स सर ने जो बनाया है प्लेटफॉर्म, वो एथिकल बिजनेस करके ही आप वो एंजॉय कर सकते हो, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, लाइफ में फन कर सकते हो। तो ये कभी भी मत भूलना। रेक्स सर हमेशा कहते थे, इफ यू आर नॉट हैविंग फन इन FLP देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये इस तरह से मेरा जर्नी रेक्स सर के साथ हुआ। और हमेशा रेक्स सर, हमारे रेक्स जैसे आदमी जो है वो दुनिया से चले नहीं जाते कभी भी, वो हमेशा रहते हैं और हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। ही विल बी विद इन आवर हार्ट फॉरएवर। ओके, सो इतना मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू साइमन सर, मुझे बोलने का मौका दिया। और जैसे ही सब लोगों ने ऑलरेडी कहा है रेक्स सर के बारे में, एंड हम लोग कभी भी उनको भूलेंगे नहीं। ओके, थैंक यू साइमन। ओवर टू यू साइमन सर। Thanks, Santosh. It's been amazing with the stories. But again, I don't want to. Let's get to our next speaker, Mr. Manoj Gaikwad, who's a very inspiring speaker, and he's come to our platform and given a lot of speeches. He's a fantastic leader. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मनोज, the screen is all yours. Thanks for coming and joining us. नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो रेक्स सर को हम लोग नमन करते हैं, और आज मुझे उनके बारे में 2, 4, 5 मिनट बात करने का मौका मिला, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ। बहुत सी बातें कर दी है लोगों ने, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग ये आज शामिल हुए हैं, उनमें से मेजॉरिटी लोगों को रेक्स सर को पर्सनली मिलने का मौका मिला है, और उन्होंने वो ये जो बातें अभी चल रही है वो महसूस किया है ऑलरेडी। जैसा जयेश भाई ने भी बताया कि वो जो शेक हैंड करते थे, मुझे काफी बार मौका मिला उनके साथ। तो और राजू मेहता जी ने बताया उनकी हाइट के बारे में, लेकिन उनके अंदर उनकी बिल्ड भी बहुत स्ट्रांग थी, और बहुत ताकत से और प्यार से दोनों चीजें पकड़ के वो शेक हैंड करते थे। तो वो भी एक हमको अननोइंगली एक मैसेज मिलता है, किसी को शेक हैंड भी करो तो कितना दिल से वार्मथ और दिल, प्यार, मोहब्बत और ताकत से वो एक ग्रिप पकड़ के करते थे, ताकि एक बार हाथ पकड़ा है अभी कभी भी छोड़ेंगे नहीं। मैं नया था, 2-3 साल हुए थे फॉरएवर में, और हमने एक उस वक्त संतोष ने अच्छा याद दिलाया मुझे, मैं सोच रहा था क्या बात करूं, तो संतोष गाड़ीगांवकर ने एक अच्छा याद दिलाया, प्रॉफिट शेयर रैली उस जमाने में, जो अभी चेयरमैन बोनस बोलते हैं, उस जमाने में प्रॉफिट शेयर रैली हुआ करती थी। और पहली एक मुंबई में रैली हुई थी षणमुखानंद हॉल में, और वहां पे हमने देखा सुनील गुप्ता जी को कुछ 78 लाख रुपीस समथिंग का एक चेयरमैन बोनस चेक मिला था। और जब वो चेक लेने को आए, स्टेज के ऊपर रेक्समोन साहब ने, उनके बगल में अमरजीत सर थे, उनको पूछा कि इसको राउंड फिगर करने के लिए कितना और रुपीस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो डॉलर में गिनते हैं, हम लोग यहाँ रुपीस में देखते हैं, और उन्होंने कुछ अमाउंट बताया। वो उतना अमाउंट उनके पर्सनल अकाउंट में से उन्होंने वो चेक बना के उनको दिया, ताकि वो राउंड फिगर 80 लाख रुपीस हो जाए। तो इतने दिलदार थे, दिलदारी के किस्से हमने बहुत से सुने उनके, लेकिन दूसरा कोई होता तो बोलता था 78 लाख हुआ, उसको राउंड फिगर करने का है तो 75 करो, नहीं तो 70 करो, थोड़ा ऊपर का निकाल दो। लेकिन इन्होंने पर्सनल अपना जेब से निकाल के वो उनको दिया। मैनेजर रिट्रीट गोवा में हुई थी, और वहां पे मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिला। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बहुत सी मैनेजर रिट्रीट हुई है इंडिया में, लेकिन रेक्समोन सर उस मैनेजर रिट्रीट में पूरा 3-4 दिन का जो था, चारों दिन रेक्समोन सर उसमें थे। और उस वक्त मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि वो हमको वो 3-4 दिन उनके साथ पूरा रहने का, सवेरे से लेके रात तक हम लोगों के साथ वो रहना, फिर साइट सीइंग में घूमना, और
उनके बारे में बहुत से आप हमने बार बार ये सुना और ये रिपीट हो जाएगा कि कितने हम्बल थे, कितने फोटो के लिए ये होते। और वो मैनेजर रिट्रीट का फोटो का खास करके किस्सा मैं बताता हूँ, क्योंकि एक बंदा अगर फोटो निकालने के लिए खड़ा होता था उनके साथ, तो उनका तो वो ब्लड में ही है कि किसी को नाराज नहीं करना। तो बहुत से लोग लाइन ही लगती थी उनके साथ फोटो निकालने के लिए। मतलब सवेरे 10 बजे उनके साथ ये अभी 100 मैनेजर रिट्रीट क्वालिफायर ने फोटो निकाले, 11-12 बजे वापस किसी को मूड आता था उनके साथ और एक फोटो निकालने का, और भी 100 लोग निकाल रहे। और वो बोलते थे यू पीपल आर क्रेजी फॉर फोटोज, बट वो थकते नहीं थे, टायर्ड नहीं होते थे और किसी को नाराज नहीं करते थे। 43 साल हो गए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को। आज हम रेक्स कितने दिलदार है, कितने विजनरी है, कितने उन्होंने क्या एम्पायर खड़ा किया है और ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, उसकी बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ 1980 में, 1980 में मैं कुछ उनके बारे में इन दिनों देख रहा था, क्या कुछ मटेरियल मिलता है पढ़ने के, ये वो देख रहा था। और 1980 का एक उन्होंने लिखा हुआ एक आर्टिकल मेरे ध्यान में आया, नजर में आया, और उसमें उस वक्त का माहौल ये था 1980 में, जब फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का एक दिन का सेल जो था, एक दिन का सेल वो $1 मिलियन क्रॉस हो गया था। एक दिन का सेल $1 मिलियन। और उस वक्त बहुत ही कंपनी में खुशी का माहौल था, क्योंकि 2 ही साल हुए थे सिर्फ कंपनी को, और एक दिन का सेल जो था वो $1 मिलियन हो। हमको बीना और भरत शाह जी ने भी बताया कि वो एक फोटो दिखाया कि, या फिर मेरे ख्याल से जोश ने एक फोटो दिखाया कि जो जहां पे जिस बैंक ने रेक्स साहब को लोन देने से मना किया था, वो पूरा जगह, वो प्रीमाइसेस पूरा रेक्स साहब ने बाद में खरीद लिया। तो बहुत स्ट्रगल करके वो आए थे, और 2 ही साल हुए थे। 2 साल में जब उन्होंने $1 मिलियन एक दिन का सेल हुआ था, उस वक्त उन्होंने लिख के रखा है जो बात बहुत मुझे खुद को अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि मुझे ये बात आप लोगों से भी शेयर करनी चाहिए। उन्होंने लिखा था उस वक्त कि हैप्पीनेस, खुशी क्या होती है। अभी दूसरे कंपनी का, मैं आज एक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, वो सीईओ का देख रहा था कि उसके आईपीओ में कितने हजार करोड़ रुपए का उसका वो हुआ आईपीओ का, तो कैसे नाच रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन रेक्समोन साहब का जब ये $1 मिलियन का एक दिन का सेल हुआ था 80 में, तब उन्होंने लिख के रखा है हैप्पीनेस के बारे में। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, नाइस वेदर और ब्यूटीफुल होम। हैप्पीनेस जो है वो मटेरियल थिंग या बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर या एक खूबसूरत घर से नहीं आता है। तो कहां से आता है? उन्होंने आगे लिखा है कि इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर सर्विस टू आवर फेलो ह्यूमन बीइंग। ये जो खुशियां जो है, जो सही हैप्पीनेस जो है, वो हमारे जो सर्विस है, हमारा जो फेलो ह्यूमन बीइंग है उसके प्रति जो हमारी सर्विस है, हमारी जिम्मेदारी है, उसमें से जो हमको मिलता है वो असल हैप्पीनेस है। तो आज जो हम वो बात करते हैं कि पावर ऑफ फॉरएवर इज पावर ऑफ लव, उसकी जो सीड्स है ना, वो वहां से थी। कहानी की शुरुआत में हमेशा कहता हूं, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, मेरे प्रेजेंटेशन में 500 बार आया होगा कि कहानी की शुरुआत सोच से होती है। तो इस बंदे की, इस जेंटलमैन की, सदगृहस्थ की सोच इतनी अच्छी थी, वो हमेशा अपने जो संपर्क में आए हुए जो लोग हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं, उनको हम क्या सर्विस दे सकते हैं, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमेशा उसके बारे में सोचते थे, और वो उसमें उन्होंने अमल किया। पूरी जिंदगी उसके अंदर उन्होंने लगा दी। दोस्तों, ये मीटिंग जो है, ये मौका है मेरे ख्याल से हमारे लिए, कि जैसे कि वो बीना जी ने भी कहा कि एक जोत उन्होंने दी है हमारे हाथ में, एक टॉर्च। ये रेक्समोन साहब का भी बहुत बार ये वर्ड आपको उनके, अगर कुछ आप पढ़ेंगे तो टॉर्च वर्ड उन्होंने काफी बार इस्तेमाल किया है। वो जो टॉर्च उन्होंने जो जलाई है, जो अंधकार दूर करने के लिए, हमारे संपर्क में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जूझ रहे हैं, जो तकलीफ में है, जो चैलेंजेस में है, उनके घरों में जो अंधकार है वो निकालने के लिए वो जो जोत उन्होंने हमारे हाथ में दी है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी रेक्समोन साहब का काम खत्म नहीं हुआ। उन्होंने हमारे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर करी है, बहुत अच्छी करी है, लेकिन रेक्समोन साहब का असल काम तब पूरा होगा जब हम लोग उतनी ही श्रद्धा से, उतनी ही इमोशन से, उतने ही एथिक्स से, उतनी ही मेहनत से वो जो जोत है
वो और आगे लाखों करोड़ों अरबों लोगों तक लेके जाए, जहां तक हम लोग पहुंच सके वहां तक लेके जाए, वो सही मायने में रेक्समैन साहब के लिए एक श्रद्धांजलि होगी। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे रुकता हूँ। मैं मनोज गायकवाड़, मेरी फैमिली की ओर से, मेरे टीम की ओर से, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया की ओर से, और जहां जहां इंसान बस रहा है वो सभी इंसान और इंसानियत की ओर से रेक्समैन साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। Thanks a lot, Manoj. It was very touching, very inspiring, and very well spoken also. Thanks a lot, Manoj, for coming. In fact, Manoj को मैंने last minute बताया कि ऐसे हम लोग plan कर रहे हैं, and he agreed. It was again fantastic. Anyway, our next speaker for today is Jayanti Patel, who is again mind-blowing, amazing personality. और उनका तो story अलग ही है. तो मैं ज़्यादा time नहीं लूँगा. If you can have Jayanti Patel, please. थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आज सर का श्रद्धांजलि के साथ में थोड़ा मेरा जो उनके साथ में बिताया हुआ पल है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का जो आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक ही चीज मैं बोलता हूँ, अगर मेरे जैसे मतलब हम लोग जो मध्यम वर्ग से थे, हम लोग जो जूझ रहे थे, हम लोग जो लाइफ को स्ट्रगल करके हम लोग अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे थे या दे रहे थे, अगर ये फॉरएवर ना होता, अगर ये दादा ना होता तो हम कहाँ पे होते। ये दादा ने जो ये रेक्स दादा है ना, मैंने ऐसा बोलता हूँ कि मेरे दादा, मेरे परदादा कुछ लेगेसी में अगर मुझे कुछ नहीं दे के गए, पर ये जो दादा है फॉरएवर का, उन्होंने ऐसे लेगेसी दी है, ऐसा मुझे वारसा दिया है कि आज मैं जो करोड़पति बना हूं तो इस फॉरएवर की बदौलत बना हूं। एक छोटा सा स्कूटर रखता था, मेरे अंदर 20 रुपए का पेट्रोल डालने का जिसके पास पैसा नहीं था, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरी बदल दी। इस शख्सियत को आज मैं अपना शब्दों के श्रद्धा सुमन से उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूं यहाँ पे, आज ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उनके बारे में आज सब लोगों ने बताया, जैसे मनोज जी ने बताया, मनोज भाई ने बताया कि उनका काम खत्म नहीं हुआ, जैसे राजीव मेहता सर ने बताया कुछ के उनका जो फोटो जो खींचते थे वो सब अपना अपना जो एक्सपीरियंस उनको सबने शेयर किया है ना, ऊपर दिल से किया है, कोई आर्टिफिशियल किसी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि रेक्स सर का जो विजन था, जो विजनरी पर्सन थे, उन्होंने जिन जिन लोगों को छुआ है ना, आज हर दिल में रेक्स पैदा हो गया है, आज हर घर में रेक्स है। अभी रेक्स यहाँ से गए नहीं है, यहाँ पे रेक्स मौजूद है, यहाँ पे रेक्स है सर, हमारे दिलों में अभी जिंदा है। मेरे को याद है, मैं जब 35 ईयर मैं और जोस मैथ्यू सर हम लोग ग्रीस थे, उसके आगे हम लोग 35 साल जब फॉरएवर का हुआ था तो सेलिब्रेशन था एक बीच के ऊपर, पूरा 35 ईयर। मैं मेरी एक आपको उनके साथ में घटी हुई घटना में शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग उसी दिन 35 साल का सेलिब्रेशन जो था वो सेलिब्रेशन शेयर कर रहे थे। उसके बाद जो खाना था, जो हम लोग बोलते थे गाला डिनर जैसा, तो हम लोग खाना खा रहे थे, तब एक बंदा मेरे पास आया था। आज भी मुझे वो वाकया याद है सर। आज मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि शायद आपको रेक्स सर को जानने का, उनको समझने का नजदीक से ज्यादा मौका मिल जाए। उनके साथ में जब हम लोग खाना खा रहे थे ना, तो एक बंदा मुझे बोला था कि भाई देख, हम जो खाना खा रहे हैं ना वही रेक्स सर खा रहे हैं। मैं वही बोलना चाहता था, उनका कहने का मतलब यही था कि हम लोग एक ही, उनका कोई अलग खाना नहीं है, रेक्स सर हमारे साथ खा रहे हैं, वो ऐसा बोलना चाहता था। पर मैंने उनको बोला, मेरे भाई रेक्स सर, हम जो खाना खा रहे हैं ना वो रेक्स सर नहीं खा रहे सर। रेक्स सर जो खाना खा रहे हैं ना, वो लेवल का खाना खाने का मौका उन्होंने आज हमें दिया है। वो खाना जो है वो हमें आज खिला रहे हैं सर। हमारी औकात नहीं थी इतनी कि हम लोग इतना ब्रेकफास्ट कर सके, इतनी 5 स्टार होटल में घूम सके, इतने बड़े जहाजों में देश विदेश की यात्रा कर सके। ये जो थी सर, ये रेक्स सर का दिल था, ये बड़प्पन है सर का, ये दादा का बड़प्पन है कि हम लोगों को उसके दिल में प्यार दिया। और यही ज्योत से ज्योत, अभी मनोज
भाई ने बताया ना कि ज्योत से ज्योत जलाई, जो बिना बेन ने भी बोला टॉर्च लेके सब घूमते थे, और टॉर्च लेके हमें भी ये अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखानी है, करनी है। जोश सर ने जो उनका पहले जो फोटो दिखा है, एकदम हम्बल पर्सनालिटी, वो मकई का भुट्टा खरीदने के लिए उधर बैठ गए, ऐसी पर्सनालिटी आप सोचो। एक खाली बंबई का बिल्डिंग देखो, किसी के पास हो ना तो वो 2 वेत, गुजराती में बोलते 2 वेत ऊपर चलने लगे, ऐसा बिल्डिंग तो खुद का एक ऑफिस की बात बताओ, ऐसा 150 देश में जिसका वो ऑफिस हो, जिसकी 150 देश में करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति है, उस व्यक्ति को आज हम याद कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम ऐसी कंपनी में हैं। जो हमारे दादा थे ना, वैसा नहीं है, उनके पीछे भी उनके वारसा छोड़ के गए हैं, उनका जो प्यार मोहब्बत, उनका जो कार्य करने की पद्धति थी, उनके वारसा जो छोड़ के गए, वो भी ऐसे लोग हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर हम जो ताज होटल के अंदर से एक डिनर था, सब मैनेजर को सबको बुलाया था दिल्ली के अंदर, तो हम लोग जब बाहर निकल रहे थे तो लास्ट में हम लोग उनको पहले जब थे तो वो गेट कीपर था उधर का, वो गेट कीपर वो डोर खोला और बाहर निकल गए सब लोग। मैं भी उनके साथ में रेक्स सर के साथ पीछे ही था कि कहीं मैं पहली दूसरी बार से हम लोगों को फोटो खींचने का मौका मिले नहीं मिले, ऐसा करते करते हम लोग बाहर निकलते थे। उन्होंने बाहर निकलते टाइम पे वो गेट कीपर था ना, उनके साथ में पहले मुझे कैमरा थमाया, वो मेरे पास थे, उनके साथ में पहले मुझे याद है कंट्री मैनेजर थे अमरजीत उबी सर, वो साथ में रह के उनको बोला कि कंट्री मैनेजर को बोला कि हमारा फोटो खींचो, वो भी मेरे पास है, वो भी मेरे पास। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इतने हम्बल, सबने बताया ना हम्बल, पर वो वर्ड्स ही नहीं है उनके बारे में कि क्या बताऊं। ऐसी पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी, कई सदियों के बाद एक ही पैदा होती है, उनका नाम है रेक्स मॉन। उनकी विचारधारा खत्म नहीं हुई है। मुझे याद है, मैं और जो सर जब लास्ट 2019 में हम लोग एरिज़ोना गए थे, उनकी ऑफिस में मुझे जाने का मौका मिला। 2 बार मैं अभी अमेरिका जाने का मुझे मौका मिला था रेक्स सर की बदौलत। तो मैं वहां पे थे, हम लोग ऑफिस में थे, और जब उन्होंने एक वर्ड बोला, जब वहां पे हम लोग नजदीक जाने लगे तो रेक्स जोश सर ने उसके साथ बात की, अपना नवाज मैम के साथ में, नवाज मैम ने एक ही वर्ड बोले कि ये बफेलो मैन। सर खाली आप लोगों को मैं उनकी जो जिंदा दिली है ना, उनका जो मेमोरी पावर आप बोलते हो ना, उनका जो प्यार है ना, फॉरएवर जो हम बोलते हैं ना, लव फॉरएवर लव, और ये सब वर्ड बोलते हैं ना, वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे जब एक वर्ड बोला ना, बफेलो मैन, कई करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर है, कई करोड़ लोग है, कई करोड़ एफबीओ है, उसमें से चुन के इंडिया के अंदर, गुजरात के अहमदाबाद के एक गांव थे, उनको पहचान के मुझे बोला बफेलो मैन। मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। इतनी पर्सनालिटी, हम्बल पर्सनालिटी, ऐसी व्यक्तित्व आज मैंने नहीं देखा है। खाली एक ही है, उनकी जो ज्योत है ना, वही आगे लेके चलना है, तो उसकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी एक खाली जेब, अगर इसका इलाज करना चाहते हो ना, तो लोगों को कमाने का एक मौका दीजिए। करना ना करना उसके ऊपर, उनका ऊपर छोड़ दो। ये जब तक वर्ड्स जिंदा है ना, फॉरएवर हमारे रेक्स दादा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। इसी के साथ में मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए, कई सारे फोटोग्राफ्स और बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिया, स्कूटर से लेके कई मतलब लग्जरियस गाड़ियों में ठहरने का, फरने का सफर मौका हमें दिया है। एक काबिल इंसान बनाया, नहीं तो अंधेरी गलियों में कहीं भटक रहे होते, वड़ा पाव खा के जी रहे होते। उससे कि ताज में मैं रह के आया, बंबई की ताज में 4 दिन रहने का मुझे मौका मिला। किसी को बंबई में रहते उनको पूछो कि ताज में रहना है तो क्या होता है। मैं ताज में रह के आया, होटल ताज, वहां पे रहने का मौका दिया। ये रेक्स का बड़प्पन था। उनके साथ ये विनम्र श्रद्धांजलि से, उनके कुछ पुष्पगुच्छ द्वारा उनको श्रद्धांजलि देते हुए, थैंक यू वेरी मच। ये पूरी जो टीम है, उन्होंने मुझे जो मौका दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू जयंती पटेल, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था आपका, मतलब जो एक्सपीरियंस है और अलग अलग जो बोल रहे हैं। मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वी हैव ओवर शॉट द टाइम एंड हम लोग का टाइम, लेकिन मैं एक लास्ट वीडियो प्ले कर रहा हूँ। आप, मेरा ये रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद हम लोग बाय नहीं करेंगे, वही वीडियो के बाद हम लोग का सेमिनार खत्म होता है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है देखो ये वीडियो, क्योंकि
रेक्स नवाज और ये जो यंग थे उनका पूरा स्टोरी है और इतना अच्छा मेरे को लगा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये हो सकता है तो पूरा देख लो, अगर आपको लेट हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, द शो शुड गो ऑन, तो मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूँ। The history of Forever Living Products has many chapters. In just a few decades, it has grown from a handful of dedicated to a global multi-billion-dollar company. This is the story of its beginnings, of its founder, Rex Mon, of its first international steps, and of its future. In 1978, Rex Mon was already a successful business executive, but he saw an opportunity and started to think seriously about putting together a business of his own. One of the earliest memories I have about the beginnings of Forever is sitting around the dinner table and talking about what the name was going to be for the company, and that was a lot of fun. I remember those family discussions, and in fact, the first name was Better Living Products. I've known Rex longer than I've known Forever Living. In fact, I've known Rex before Forever Living was even set up. At that point in time, the company was called Better Living Products. And I helped him type out the marketing program and the policies, and just kind of fun seeing the stuff go happening. We started, there were only 4 employees, and you did everything because there wasn't a huge numbers of people to do things. We didn't own a computer at the time, and it was a mom and pop operation. So I helped hire the first part-time person who could ship the products, because all we had was just shipping products over some of the interests in the United States, and planned the first managers meeting that we had down the street from where we were in Tempe. And as business started to grow a little bit, he decided that it was time for him to move over and spend his life with Forever Living Products. And he asked me if I wanted to move over and work with him, and I did not have to think twice. When we'd go on our family vacations, there were many times that we'd be sitting in the car and he'd be at a payphone, because we didn't have cell phones back then, right? And so he'd be on a payphone for hours, and we'd be sitting in the car going, "Come on, Dad, let's go." From its humble beginnings, Forever Living Products began to grow very quickly. But it faced a number of significant challenges in its early years. There were moments when you wondered, what was going to happen. In network marketing, among the things that can happen in the beginning that become challenges is how fast you grow. Raise the price. If they raised the price, I was going to have to raise the price of the product, and I didn't like raising the price of the product. I thought it was nice to be able to sell the product for the same price. So I started buying the plantations and down in South Texas, where the aloe vera was growing. And it was about 81, 82. We had
in South Texas a tremendous freeze. And when you freeze aloe vera freezes, it bursts the skin on the outside and it lets all the gel run out on the ground. And in about 3 days, it becomes just a wet spot. Here we were. Our company was growing like crazy, and we just lost all of our supply of aloe vera. And it takes about 2 to 3 years for a plant, once planted, to develop to the size where you can harvest it. So a freeze takes your supply out of commission for 2 to 3 years. Rex jumped on a plane and headed for the Dominican Republic. He had heard that there was aloe being grown there. He went there. I don't remember whether it was a week or so that he was there, but when he came back, we owned a new plantation down in the Dominican Republic. I realized that we could be in trouble, if we didn't get more aloe, and so I started buying the plantations that didn't freeze. I started buying them, and I ended up buying the largest plantation. What Rex did was just typically Rex. I mean, he didn't wring his hands and what are we going to do, whatever. He just went to work and took care of the problem. And that's the way it's been throughout the history of Forever Living. We just know that there's a captain at the helm of the ship that knows what he's doing, and he's going to get you there. One of the things that the company started from the very beginning is to be vertically integrated. By that I mean he owns the fields that grows the aloe, he owns the manufacturing plant that processes the aloe, and then he owns the sales organization that sells the aloe. So he can control the quality and the cost of the product that he sells. And as a result, he can sell with confidence because he knows every step of the way what has gone into that product. Forever Living Products had survived and flourished in its early years under the leadership and founder, Rex Mon. But who is Rex? Where did he come from? And what were some of the early experiences of his life that shaped him to become such a strong business leader? Rex and I grew up together in southeastern Idaho in a little town called Soda Springs. I grew up on a farm, a ranch in Idaho. Every summer day we worked in the fields. We raised grain. We had cattle and sheep and our own pigs. And as soon as I could walk, I rode a horse. It was a lot of fun. We were both energetic, goal-oriented, and we very much liked fishing and hunting. We spent a lot of time doing that. So we had a great family, a great life, and we ate good, we worked hard, and we tried to be self-sufficient. From childhood, Rex learned the lessons of hard work, education, and faith. This led him to pursue a college education and also serve his church as a missionary in the South Pacific. I went to Utah State first to school because it was the closest college to my hometown, and I went there for a year. Then I went I went for 2.5 years to the Samoan Islands as a missionary for my church. When I first met Rex, it was years and years ago, actually. We were both about 20 years old, and it was in the Samoan Islands in the South Pacific. I'd been there for a short while, and then Rex came down. And I come home after 2.5 years in the Samoan Islands. I came back, went to Brigham Young University, and I met my wife there, Ruth, and we moved to Tempe, Arizona, to Arizona State University, and I enrolled and finished my last 2 years there. When Rex graduated from college, he entered the workforce as an accountant. He proved himself highly valuable and quickly rose in the ranks of large corporations like Del Webb. But very soon, he would see opportunities outside of these companies. I had friends that were in multi-level marketing companies, and I said to myself, you know, that's great, but there's a better way to do it. Using his background in business, Rex designed a stronger and more sustainable marketing plan that would serve as the foundation of Forever Living.
after I got the marketing plan finished, I decided, well, I've got to have a great product. It's got to be something that helps people have better health. And so I was looking at everything possible and ran into 3 doctors in Dallas, Texas that had spent 25 years of their lives developing the stabilization process for aloe vera. Well, most everybody, when they first told them what we were going to sell, they said, "You're crazy. You know, nobody's going to buy aloe vera juice or aloe vera gel." And so they thought I was crazy when I just said, "I'm going to retire from the company and I'm going to do aloe vera full time," and it worked. And so that's how I started, and that was the first products. 3 aloe vera products was our very beginning. Within just a few years, Forever Living expanded beyond the borders of the United States. Japan was one of the first countries it expanded to. When Forever began in Japan, I was at a very young age still. I was probably 13, 14 then. But I remember the excitement around it. It was one of the first foreign countries that we were going to operate business in. And of course, a tremendous opportunity. It's a huge country to go into and do business. And then I can remember, you know, from that point on, all the trips that Rex made there. You know, he went there a lot. In fact, I would have to say there's probably not another country that Rex has been to as much as he's been to Japan. And I kept thinking, why is Rex putting all of this time and all of this money into something that never seems to make any progress? But he had a vision that the Japan market was ideal for the products and the way that he does business. Japan was just the beginning. Over the years, Forever Living has seen phenomenal growth throughout the entire world. Nobody, I don't think, even Rex, realized or perhaps even thought that it would grow to the extent that it has throughout the world. 155 countries, $2.75 billion. When you think really, 35 years is a very short time frame to be in over 150 countries and to get products out there. The whole system that's been set up, you know, getting products out there, supplying it for the people all over the world, just is quite an amazing feat. You know how Forever expanded? It's because we were in a country and somebody joined the company there, got so excited about it, they wanted to share it with their family back home where they came from. That just keeps happening over and over. We open up another little country in Siberia or wherever, and you think, well, that's going to be a long time before this thing gets going. But it surprises you. People in the office always dreaded when he came back from some foreign rally, because the first thing he said is, I met some people from another country and they're wanting to have the company in their country. I want to set up a company in that country for those people. They need this opportunity. That's really how Forever expanded, is by the excitement and passion and belief of the distributors. Even still now, with 150 countries, you think there's not very many countries left, but it seems maybe weekly or monthly we get a request of, what about country X? We're seeing great growth. Overall, this year again, the company has grown in an economy right now where people are being laid off. We've not had to lay off any people. In fact, we've hired additional people, especially in our .com and computer department, so that we can meet the challenges of the future. We're coming up with a lot of new software programs that we are trying to automate as much as possible so that we can be ready for the next growth. That is definitely going to come, we have no doubt. I have no doubt about that. Forever Living has been shaped in large part by the character of its founder. His unique approach to life and business has made a huge impact. Rex is a fun person, and he likes to have fun just probably more than anybody I know. And so he works hard, but he has a lot of fun also. Life was just always exciting when you were around Rex. But I guess the thing that probably attracted me most to him was
just his interest in people. He says all the time that he likes to sit in an airplane on the aisle seat so he can talk to people on both sides of them. And that is true. The thing about Rex is he's just really a fair person. He's fair. He loves the people that work for him. You dedicate your time, your life to the company. And it's so easy to do because he sets such a great example at the top. He's also marvelous at recognizing people who achieve. And he recognizes those who do a good job and work hard. One thing that I love about Rex is once he's committed to a cause, once he's committed to a country, once he's committed to a distributor, he does not back off. He really does not. He puts his heart and soul into making sure that those countries succeed, because his main goal is to make sure that the distributors are treated right. Aloe vera is where Forever Living started, but really Forever Living started with Rex. Rex is the backbone of the company. Rex Mon is the most amazing guy. He's the hero in my book. Вы знаете, об этом человеке невозможно просто так говорить. Когда мы вспоминаем Рекса Мона у себя в Казахстане, у нас всегда появляются слезы на глазах от любви к этому человеку. He came up with this fantastic idea that more than 9 million people benefit from all over the world today. Rex ist der Spirit dieser Firma und er bringt seine Liebe zu allen Distributoren rüber und er ist ein großes Vorbild für uns. Wenn es mehr Menschen auf dieser Welt gäbe wie Rex Mon, dann hätten wir eine bessere Welt. Und Rex ist Rex. Und Rex ist immer mitten unter seinen Distributoren. Man spürt seine Liebe, man spürt, dass er die Menschen liebt. Und not only has he created this enormous thing, this force for good in the world, but he's also one of the most humble people I've ever met. Et Rex Mongan nous donne la vision. Hier encore, j'ai entendu de sa bouche quelque chose de très important. Il a dit, si vous avez la chance, en tant que leader, d'être dans ce business forever, vous avez aussi la responsabilité de gagner beaucoup d'argent pour vous permettre d'aider et d'améliorer la vie de beaucoup d'autres personnes autour de vous. I just see a man who wants to bring joy and happiness to the world through a very well thought out program. He's a giant amongst men. Privileged to know him and to work with him. Of course, what's important is the company's growth and how it translates into real benefits in the lives of its people. It's their contributions to Forever Living that make it something extraordinary. To affect as many lives as we have in this company over those years and see the change is probably one of the greatest feelings you can have. The people that I've been able to meet, the places that I've been able to travel, the excitement of seeing a business grow from 4 employees to literally millions of distributors throughout the world is a tremendous sense of accomplishment. And it hasn't all been done by one person. Under the direction and leadership of Rex Mon, many people have contributed to the growth. And I feel fortunate in having had the opportunity of contributing my portion. The story of Forever Living lies not just in its past, but also in its future. And Forever has a bright future ahead. We know that the future is bright. We don't have to go and beat the sidewalks, beat the drums about Forever. Forever's word and Forever's product and Forever's credibility and the quality gets to the people before we ever get there. It's very exciting to look at that and to see the potential that we have to grow in the future. And that's really what we're working on right now. We spent maybe the first 30 years working on expanding around the world and having a presence there. For me, the next 30 years is tapping into the potential in each of those markets. The history of Forever Living products has been shaped by visionary leaders, extraordinary products, challenges met and overcome, and phenomenal growth. But most of all, it is a story of dedicated and hard-working people. And it is a story with many chapters still to be written. I can go back to when we were sitting at that table
talking about the name of the company and talking about the future of this company. And it truly is what its name is. It's forever. It will continue to go on through generations of time and give people the benefits and the lifestyle that they're looking for. It all started with Aloe and our marketing plan. And we started very small. We started with a few people and helped them, and we have been growing ever since, and we've increased our products to approximately 150 that we have now. They all help people have better health, and that our goal was to help people get what they wanted in life. So today was fantastic, and after seeing this video, the last video, I think many people have left, but that's okay, because I think people like Bharat and Jayesh and Santosh and Rajiv might have little tears in their eyes to see the progress in the success that he was, working on those days. And like his first country was Japan, and today, can you believe it? He's in 180 countries, guys. Just imagine 180 countries. So it's amazing. I would like to thank all our speakers. So I would like to take their names also and thank them, because it has been a blessing and a fantastic thing that we had today with them. And I don't think we can ever get such a fantastic team ever, which can work with our team. And I want to thank Bharat Bhai, Jose, Jayanti Bhai, Santosh, Rajiv, Jyoti, and all of you all for this lovely event that we have today. Sorry if I've forgotten somebody. So let me. Okay, I've got the names right now again. Okay, I'd like to thank Jose, Ujjwala, Praful, Rajiv, Jyoti, Bharat and Beena, and Jayesh, then Santosh, Manoj Gaikwad, and all our full team and all our lovely distributors जो अभी तक रुके हैं, अभी तक उस चीज को देख रहे हैं, तो मैं उनको सबको थैंक यू बोलूंगा. Namaste, all the best, and we'll always pray for him. But our prayers will be performance. We'll perform and show what we have done and what we will do. So thank you and all the best, guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Good night.